بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو نہایت مہربان اور بے حد رحم فرمانے والا ہے، جس نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ یا اللہ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں دورہ قرآن جیسی بابرکت محفل میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی انتہا بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام معزز حاضرین و سامعین کو دورہ قرآن کلاس نمبر 16 میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ آپ سب کا بے حد شکریہ کہ آپ مسلسل قرآن کے اس سفر میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو معزز سامعین، انشاءاللہ آج ہم سورہ بنی اسرائیل سے سورہ کہف تک کا مطالعہ کریں گے۔ کل ہم نے سورہ بنی اسرائیل اسٹارٹ کر دی تھی اور آیت نمبر 8 تک ہم نے مطالعہ کیا تھا۔ تو یہ جو سورہ ہیں ہمارے سامنے آج آنے والی ہیں، پڑھی جانے والی ہیں، یہ ہمارے ایمان کی آزمائش کے لیے ہیں، جس میں ہمیں صبر سکھایا جا رہا ہے، آخرت کی تیاری ہماری کروائی جا رہی ہے، اور اللہ پر کامل توکل کرنے کا یہ ہمیں درس دیتی ہے۔ تو آج کے اسباق میں ہم عقیدہ توحید، آخرت کی یاد دہانی، انبیاء علیہ السلام کے واقعات، صبر و استقامات کی تعلیم اور انسان کی ذمہ داریوں کے بارے میں رہنمائی آج ہمیں ان سوروں سے ملنے والی ہے انشاءاللہ۔ تو اب میں دعوت دیتی ہوں ہمارے معزز اسپیکر بھائی مباحث کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کا درس پیش فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ بھائی مباحث، اسٹیج آپ کے حوالے ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دورہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کا کل ہم نے آغاز اس کا کر دیا تھا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ جو معراج کے واقعے کے بعد یہ سورہ بنی اسرائیل وہ نازل ہوئی۔ آیت نمبر 1 جو ہے اسی کی طرف اشارہ اس کا کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ہمیں بتایا کہ جو بنی اسرائیل ہیں اس پر 2 بار عروج آئیں، یعنی 2 بار وہ قوم بلند ہوئی اور 2 بار اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ پہلی بار جو اللہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ تعالیٰ کا کوڑا ان پر برسا، وہ تھا بخت نصر کے ذریعے 560 عیسیٰ پورو میں ان پر یہ آیا، ہیکل سلیمانی کو ڈسٹروائے کر دیا گیا۔ اور ایک عذاب آیا رومن امپائر کے ذریعے، اور جو کہ وہ 70 عیسوی پورے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے وہ 70 سال پہلے رومن امپائر کے دور میں پھر فلسطین پہ حملہ ہوا اور بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال دیا گیا اور ان کا ہیکل سلیمانی گرا دیا گیا، جو کہ آج تک گرا ہوا ہے۔ تو یہ ہمیں کل سورہ بنی اسرائیل کے سٹارٹنگ میں بتا دیا گیا ہے کہ 2 عروج آئیں بنی اسرائیل پہ اور 2 ان کے زوال آئیں۔ اور پھر آیت نمبر 8 میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی تھی، اور اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 9 سے ہمیں بتائیں گے کہ عروج کے حصول کا ذریعہ قرآن کریم ہے، یعنی جب کسی قوم کو عروج ملتا ہے وہ کس کی وجہ سے ملتا ہے؟ وہ ملتا ہے اس اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی وجہ سے۔ جو قوم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پکڑ لیتی ہے مضبوطی سے، اس کا حق ادا کر دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو دنیا میں سر بلند کر دیتا ہے۔ یہی بنی اسرائیل کا اگزامپل لے کر ہمیں سمجھایا تھا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ عروج اور زوال اس لیے آئے تھے کیونکہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب کو پکڑا تو وہ دنیا میں سربلند ہو گئی، لیکن جب انہوں نے اس سے بے رخی اپنائی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا ان پر برسا۔ اور یہی امت مسلمہ کو اب سمجھایا جائے گا کہ قوموں کا عروج جو زوال ہے وہ اس قرآن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سی قوموں کو عروج بخشے گا اور بہت سی قوموں کو پست کر دے گا، یعنی جو قوم اس قرآن کو پکڑے گی، اس کا حق ادا کرے گی، اللہ تعالیٰ اس قوم کو دنیا میں سربلند کر دے گا، اور جو قوم اس کو چھوڑے گی، اس کا حق ادا نہیں کرے گی، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں ذلیل و خوار کر دے گا۔ اور امت مسلمہ آج دنیا میں ذلیل و خوار وہ کس لیے ہے؟ اس کا صرف واحد ایک ہی ریزن ہے کہ قرآن کریم سے دوری، قرآن کا حق ادا نہ کرنا۔ اس وجہ سے امت یہ ہماری پسپا ہے، اور کوئی حیثیت پوری دنیا میں اس امت کی نہیں ہے۔ مسلمانوں کا خون
इस दुनिया में पानी की तरह कि बहाया जाता है और कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, मुसलमान आपस में लड़ते हैं। ये सब होता किस वजह से? क्योंकि ये अल्लाह ताला के कुरान को इन्होंने नहीं पकड़ा। तो आयत नंबर जो 9 से है वही अल्लाह ताला बताएंगे कि जो कौमों का उरूज होता है वो कुरान करीम की वजह से होगा, यानी अल्लाह ताला की किताब की वजह से होगा। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 9। हकीकत ये है कि ये कुरान वो राह दिखाता है जो बिल्कुल सीधी है। जो लोग इसे मानकर भले काम करने लगे उन्हें ये खुशखबरी देता है कि उनके लिए बड़ा अज्र है, और जो लोग आखिरत को ना माने उन्हें उन्हें ये खबर देता है कि उनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। इंसान बुराई उस तरह मांगता है जिस तरह भलाई मांगनी चाहिए। इंसान बड़ा ही जल्दबाज वाक़ हुआ है। देखो, हमने रात और दिन को दो निशानियां बनाया। रात की निशानी को हमने बेनूर बनाया और दिन की जो निशानी को रोशन कर दिया, ताकि तुम अपने रब की मेहरबानी तलाश कर सको और महीने और साल का हिसाब मालूम कर सको। इसी तरह हमने हर चीज को अलग अलग छांट कर रखा है। इंसान का सगुन हमने उसके अपने गले में लटका रखा है, और क़यामत के दिन हम एक नविस्ता उसके लिए निकालेंगे, यानी जो नामा अमाल है इंसान का, जिसे वो खुली किताब की तरह पाएगा। पढ़ अपना अमाल नामा, आज अपना हिसाब लगाने के लिए तू खुद ही काफ़ी है। आयत नंबर 14। तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि जब नामा या माल इंसान को दिया जाएगा तो अल्लाह ताला कहेंगे कि पढ़ ले आज अपना अपना जो नामा या माल अल्लाह ताला ने दिया है उसको पढ़ ले, और अपना हिसाब लगाने के लिए तू खुद ही काफ़ी है। तू खुद पढ़ ले, तुझे खुद पता लग जाएगा कि तू जन्नत का मुस्तहिक है या जहन्नुम का मुस्तहिक है। फिर अल्लाह ताला आयत नंबर 15 से बताएंगे कि कौमों पर जब अजाब आता है वो कब आता है? जब उन पर इत्माम हुज्जत पूरी कर दी जाती है, यानी अल्लाह ताला की निशानियां उन पर वाज़ेह कर दी जाती हैं और वो फिर भी उसकी नाशुक्री करती हैं और ईमान लाकर नहीं देती, तब उन कौमों पर अजाब आता है। अल्लाह ताला ने कहा, जो कोई सीधा रास्ता अपनाए उसका सीधे रास्ते पर चलना उसके अपने ही लिए फ़ायदेमंद है, और जो गुमराह हो उसकी गुमराही का बवाल उसी पर है। कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ न उठाएगा, और हम अजाब देने वाले नहीं हैं जब तक कि लोगों को हक और बातिल का फ़र्क समझाने के लिए एक पैगंबर ना भेज दें। यानी जब तक लोगों पर जो तालीमात है, हिदायत है, वाज़ेह ना कर दें, अल्लाह ताला तब तक किसी को अजाब नहीं देता। जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा करते हैं तो उसके खुशहाल लोगों को हुक्म देते हैं और वो उसमें नाफरमानियां करने लगते हैं। तब अजाब का फैसला उस आबादी पर चस्पा हो जाता है और हम उसे बर्बाद करके रख देते हैं। देख लो, वो कितनी ही नस्लें हैं जो नूह के बाद हमारे हुक्म से तबाह हुई। तेरा रब अपने बंदों के गुनाहों से पूरी तरह बाखबर है और सब कुछ देख रहा है। फिर अल्लाह ताला आयत नंबर 18 से हमें बताएंगे कि आप तय कर लें, आप डिसाइड कर लें कि आप दुनिया के तलबगार हैं या आप आखिरत के तलबगार हैं। जो कोई इस दुनिया में वो जल्दी हासिल होने वाले फायदों की ख्वाहिश रखता हो, उसे हम यही देते हैं जो कुछ भी वो जिसे देना चाहें। फिर उसकी किस्मत में जहन्नुम लिख देते हैं जिसे वो तापेगा फिटकारा हुआ और रहमत से महरूम होकर। यानी दुनिया चाहिए तो दुनिया मिल जाएगी, लेकिन फिर बाद में जहन्नुम मिलेगी। और फिर अल्लाह ताला ने कहा, और जो आखिरत की ख्वाहिश रखता हो उसके लिए कोशिश करे जैसा कि उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, और हो वो ईमान वाला, तो ऐसे हर आदमी की कोशिश की कद्र की जाएगी। इनको भी और उनको भी, दोनों फरीकों को हम दुनिया में जिंदगी का सामान दिए जा रहे हैं। ये तेरे रब की देन है और तेरे रब की देन को रोकने वाला कोई नहीं। यानी दुनिया में अल्लाह ताला सबको देता है, जो दुनिया परस्त है उसको भी देता है और जो आखिरत की जो कोशिश करता है उसको भी देता है। अल्लाह ताला दुनिया में सबको देता है, लेकिन आखिरत में सिर्फ अपने खास बंदों को देगा जिन्होंने आखिरत के लिए कोशिश की होगी। फिर अल्लाह ताला ने कहा, ये नंबर 21 में, मगर देख लो, दुनिया ही में हमने एक गिरोह को दूसरे पर कैसी फजीलत दे रखी है, और आखिरत में उसके दर्जे और भी ज्यादा होंगे और उसकी बड़ाई और भी ज्यादा बढ़ चढ़कर होगी। तू अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद ना बना, वरना मलामत किया हुआ और बेसहारा होकर बैठा रह जाएगा। आयत नंबर 23 से लेके 40 तक आ, एक इस्लामिक मैनिफेस्टो आएगा, यानी जैसे एक इलेक्शन में जो पार्टी होती है वो कहती है अगर हम हुकूमत में आ गए तो हम अवाम के लिए ये काम करेंगे, यानी मैनिफेस्टो वो लॉन्च करती है अपना इलेक्शन से पहले। ऐसे ही हिजरत से 1 साल पहले मिराज की ये वाकये के बाद की ये सूरह है।
हिजरत होने के बाद एक इस्लामिक रियासत वो कायम होने जा रही थी, तो अल्लाह ताला एक पूरे अरब के सामने एक मैनिफेस्टो रख रहे हैं कि अगर इस्लामिक रियासत ये बनेगी तो इसमें क्या-क्या हुकूक रहेंगे, वो क्या-क्या कानून साज़ी रहेगी और इसमें क्या-क्या अखलाकी कानून रहेंगे, वो अल्लाह ताला हमें बताएँगे। अब आयत नंबर 23 से लेके 40 तक। आयत नंबर 22 में भी अल्लाह ताला ने वो क्लियर कर दिया कि सबसे पहले उसकी बेस जो रहेगी वो तौहीद पे रहेगी। क्योंकि अल्लाह ताला ने और आयत नंबर 23 में भी अल्लाह ताला वो तौहीद से ही बात को शुरू करेंगे। अल्लाह ताला ने कहा, तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम लोग किसी की इबादत ना करो मगर सिर्फ उसकी। यानी सबसे पहली जो दफ़ा है आर्टिकल की इस्लामिक वो कॉन्स्टिट्यूशन में वो है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी, हुक्म सिर्फ अल्लाह का चलेगा, कानून साज़ सिर्फ अल्लाह है। और फिर उसके बाद फरमाया, माँ-बाप के साथ अच्छा सलूक करो, अगर तुम्हारे पास इनमें से एक या दोनों बूढ़े होकर रहें, तो उन्हें उफ़ तक ना कहो, ना उन्हें झिड़क कर जवाब दो, बल्कि उनसे एहतराम के साथ बात करो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 5 मर्तबा ऐसा है कि अपने बाद जो हक गिनवाए हैं, वो वालिदैन के गिनवाए हैं। अपने बाद कुरान में अगर ईमान और इताअत की बात आएगी तो अल्लाह के बाद रसूल का ज़िक्र आएगा, लेकिन अगर हुकूक की बात आएगी तो अल्लाह ताला अपने बाद जो हक गिनवाता है इंसान को वो है उसके वालिदैन के हक। तो ये पैटर्न सिमिलर हमें वो यहाँ देखने को मिलता है, सूरह अनकबूत में देखने को मिलता है, सूरह लुक़मान में हमें देखने को मिलता है और कुरान में 2 मकाम हो रहे हैं, वहाँ हमें यही पैटर्न देखने को मिलता है। अल्लाह ताला ने अपने हक के बाद वालिदैन के हक बताएँ, तो इससे हमें वालिदैन के हुकूक की अहमियत का पता लग जाना चाहिए कि उन्हें उफ़ तक भी नहीं कहना है, उन्हें झिड़क कर भी जवाब नहीं देना है। बिल्कुल एहतराम के साथ उनके साथ आपको बात करनी है। फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 24 में कहा और और नरमी और रहम के साथ उनके सामने झुककर रहो और दुआ क्या करो कि पालनहार इन पर रहम कर। जिस तरह इन्होंने रहमत और मोहब्बत के साथ मुझे बचपन में पाला था, तुम्हारा रब खूब जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है। अगर तुम नेक बनकर रहो, तो वो ऐसे सब लोगों के लिए माफ़ करने वाला है, जो अपनी गलती पर खबरदार होकर बंदगी के रवैये की तरफ पलट आएँ। फिर आयत नंबर 26 से अल्लाह ताला की राह में वो खर्च करने के हवाले से हिदायत अल्लाह ताला देंगे कि अल्लाह ताला की राह में आपको अपना माल खर्च करना है। अल्लाह ताला ने कहा, वो नातेदार को उसका हक दो और मोहताज और मुसाफिर को उसका हक और फ़ुज़ूल खर्ची ना करो। फ़ुज़ूल खर्च लोग शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। अगर उनसे यानी वो ज़रूरतमंद नातेदारों, मोहताजों और मुसाफिरों से तुम्हें कतराना हो इस वजह से कि अभी तुम अल्लाह की उस रहमत को जिसके तुम उम्मीदवार हो, खुद तलाश कर रहे हो, तो उन्हें नर्म जवाब दे दो। यानी झिड़कना किसी को नहीं है माँगने वाले को, आपके पास नहीं है, तो आप उनको नर्म जवाब उनको दे दें। ना तो अपना हाथ गर्दन से बाँध रखो और ना ही उसे बिल्कुल खुला छोड़ दो। ना तो अपने हाथ को इतना रोक लो कि कंजूसी दिखाओ कि माल होते हुए भी आप अल्लाह की राह में नहीं लगा रहे और ना ही उसे इत और ना ही अपने हाथ को बिल्कुल खुला छोड़ दो कि फ़ुज़ूल खर्ची करने लगो आप। तो आपको एतदाल पर कायम रहना है। और ना उसे बिल्कुल ही छोड़ दो कि मलामत किया हुआ और बेबस मजबूर बनकर रह जाओ। तेरा रब जिसके लिए चाहता है रोज़ी कुशादा करता है, जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। वो अपने बंदों के हाल की खबर रखता है और उन्हें देख रहा है। यानी रोज़ी जो जिसको मिलती है कम ज़्यादा ये सिर्फ़ अल्लाह ताला की तरफ से है। किसी की कोई ख़ुसूसियत नहीं है, ये अल्लाह ताला का प्लान है कि किसको कितनी देनी है। फिर अल्लाह ताला ने कहा, अपनी औलाद को गरीबी के डर से कत्ल ना करो, हम उन्हें भी रोज़ी देंगे और तुम्हें भी, हकीकत में उनका कत्ल एक बड़ी खता है। यानी अपनी औलाद को गरीबी के डर से कत्ल नहीं करना, पॉपुलेशन नहीं रोकनी है गरीबी के डर से। और जिना के करीब ना फटको, वो बहुत बुरा काम और बड़ा ही बुरा रास्ता है। यानी जिना के करीब भी नहीं फटकना, जिना करना तो बड़ी दूर की बात है, उसके वो जिना तक जो जाने वाले रास्ते हैं, उन सब रास्तों को आपको ब्लॉक कर देना है। जिना के करीब ना फटको, वो बहुत बुरा काम और बहुत ही बुरा रास्ता है। वो किसी जान को कत्ल ना करो, जिसे अल्लाह ने हराम किया है। मगर हक के साथ, यानी किसी जान को भी आपको कत्ल नहीं करना है जिसे अल्लाह ताला ने हराम किया मगर हक के साथ। हाँ, अगर किसी से आपको किसास लेना है तो किसास लेना जायज़ है। तो जो जहाँ कोई फ़साद फ़िल अर्द कर रहा है यानी वो ज़मीन में फ़साद फैला रहा है उसकी जान ली जा सकती है। लेकिन बेगुनाह को नहीं मारा जा सकता। और जो शख्स मज़लूम की हैसियत से कत्ल किया गया हो, उसके वली को हमने किसास की माँग का हक दिया। यानी अगर किसी मज़लूम को कत्ल कर दिया, तो उसके घर वाले किसास लेंगे। कोई और माफ़ नहीं कर सकता, घर वाले खून का बदला खून लेंगे या अगर वो फ़िदिया लेना चाहेंगे, यानी खूह बहा लेना चाहेंगे, तो वो उनका राइट है।
वो दोनों में से कुछ भी मतलब चूज कर सकते हैं। तो चाहिए कि वो कत्ल में हद से ना बढ़े, उसकी मदद की जाएगी। यतीम के माल के पास न फटको मगर अच्छे तरीके से, यहाँ तक कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाए, और अहद की पाबंदी करो, बेशक अहद के बारे में तुमको जवाबदेही करनी होगी। यानी यतीम के माल के करीब भी नहीं फटकना है आपको, उसका माल नहीं वो खाना है। फिर अल्लाह ताला ने कहा मगर अच्छे तरीके से। अच्छा तरीका क्या है कि वो यतीम के माल के साथ आपने अपना माल वो यतीम के जो माल है उसको आप अपने साथ रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं उसकी किचन वगैरह सब कुछ सेपरेट करनी पड़ेगी। आप उसका मंथली देख लें कि भाई आज के टाइम में मंथली 3 से 4 हज़ार रुपए में इसका मंथली खर्च आ रहा है, इसकी स्कूल की फीस या ये की जो भी एक्सपेंसेस है वो है, उसके माल में से इतना आप मंथली वो ले सकते हैं जो उसके ऊपर वो खर्च हो रहा है, लेकिन उसके अलावा लेना जायज नहीं है। हाँ, अगर यतीम की किफालत करने वाला खुद गरीब हो तो उसके माल में से इतना खा सकता है कि जितने से उसकी जरूरत हो, यानी बेसिक नीड उसकी पूरी हो जाए, वो यतीम की तरफ से उसके लिए सदका हो जाएगा। तो ये है अच्छे तरीके से। और अहद की आपको पाबंदी करनी है, जो वादा करा है उसकी कि वादे की पाबंदी करनी है, और इसके बारे में आपसे पूछगछ होगी आखिरत में। तो वादा खिलाफ कौन होता है? वो मुनाफिक होता है, यानी जिसमें 4 अलामतें हैं वो पक्का मुनाफिक है। अमानत में खयानत करे, वादा खिलाफी करे, झूठ बोले और गाली गलौज पर उतर आए, ये मुनाफिक होता है। फिर अल्लाह ताला ने कहा पैमाने से दो तो पूरा भर कर दो, और तोलो तो ठीक तराजू से तोलो। ये अच्छा तरीका है और नतीजे के एतबार से भी यही अच्छा है, यानी नाप तोल में कमी आपको नहीं करनी है। और किसी ऐसी चीज के पीछे ना लगो जिसका तुम्हें इल्म ना हो, यकीनन आंख आंख कान और दिल सभी की पूछगछ होनी है। आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला ने क्लियर कट बता दिया कि जो बेसनद बातें हैं उनसे आपको बचना है, जिस चीज का इल्म नहीं है उस चीज के पीछे आपको नहीं पड़ना। आयत नंबर 36। फिर आयत नंबर 37 से अल्लाह ताला बताएंगे जमीन में अकड़ कर ना चलो, तुम ना जमीन को फाड़ सकते हो ना पहाड़ों की ऊंचाई को पहुंच सकते हो। इन मामलों में से हर एक हर एक का बुरा पहलू तेरे रब के नजदीक वो नापसंदीदा है। ये वो हिकमत की बातें हैं जो तेरे रब ने तुझ पर वही की हैं। और देख, अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद ना बना बैठ, वरना तू जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, मलामत किया हुआ और हर भलाई से महरूम होकर। और कैसी अजीब बात है कि तुम्हारे रब ने तुम्हें तो बेटे दिए हैं और खुद अपने लिए फरिश्तों को बेटियां बना लिया। बड़ी झूठ बात है जो तुम लोग जवानों से निकालते हो। अब अल्लाह ताला की बुलंद शान हमारे सामने आएगी आयत नंबर 41 से। हमने इस कुरान में तरह तरह से लोगों को समझाया कि होश में आए, मगर वो हक से और ज्यादा दूर ही भागे जा रहे हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि अगर अल्लाह के साथ दूसरे खुदा भी होते, जैसा कि जैसा कि ये लोग कहते हैं, तो अर्श के मालिक के मकाम पर पहुंचने की जरूर कोशिश करते हैं। यानी अगर तुम कहते हो अल्लाह अल्लाह के अलावा और भी खुदा है ना, तो वो क्या करते हैं? आयत नंबर 42 में, अगर एक अल्लाह के अलावा दो खुदा होते हैं इस कायनात के, तो क्या होते हैं? दोनों आपस में भिड़ जाते हैं और अर्श तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, यानी पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक दलील है कि ये निज़ाम इतना परफेक्टली चल रहा है, इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं है और सदियों से ये चल रहा है, और ऐसे ही ये चलता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इस निज़ाम को चलाने वाला, इस कायनात को चलाने वाला सिर्फ एक खुदा है। अगर एक से ज्यादा खुदा होते तो उनकी आपस में लड़ाई हो जाती। एक देश में अगर आप दो जनों को अथॉरिटी दे देंगे, दो प्रेसिडेंट बना देंगे, तो दो प्रेसिडेंट हम देखते हैं वो आपस में लड़ जाते हैं, देश के दो टुकड़े हो जाते हैं। हम देखते हैं कि सूडान में जो जंग है उधर दो मतलब कि दो टुकड़े हैं। कहीं भी आप अगर दो जनों के सामने अथॉरिटी रखेंगे, दो जनों को पावर देंगे, तो वो आपस में भिड़ जाएंगे और पूरे देश को कंट्रोल करने की वो कोशिश करते हैं। ऐसी अल्लाह ताला ने ये दलील दी है, अगर इस कायनात के एक से ज्यादा खुदा होते हैं तो वो आपस में भिड़ जाते हैं और पूरा कंट्रोल हासिल करने की वो कोशिश करते हैं। तो ये अल्लाह ताला की तौहीद की एक दलील है। फिर अल्लाह ताला ने कहा पा, कि पाक है वो और बहुत बुलंद है उन बातों से जो ये लोग कर रहे हैं। उसकी उसकी पाकी तो सातों आसमान और जमीन और वो सारी चीजें बयान कर रही हैं जो आसमान और जमीन में है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो उसकी हमद के साथ उसकी तस्वीर ना कर रही हो, मगर तुम उनकी तस्वीर समझते नहीं हो। यानी कायनात की हर चीज अल्लाह ताला की पाकी हमद बयान कर रही है, मगर तुम उनकी तस्वीर समझते नहीं हो। हकीकत ये है वो बड़ा ही बुर्दबार और माफ करने वाला है। जब तुम कुरान पढ़ते हो, हम तुम्हारे और आखिरत पर ईमान वो ना लाने वालों के बीच एक पर्दा डाल देते हैं और उनके दिलों पर ऐसा गिलाफ चढ़ा देते हैं कि वो कुछ नहीं समझते।
उनके कानों में बोझ पैदा कर देते हैं। और जब तुम कुरान में अपने एक ही रब का जिक्र करते हो तो वो नफरत से मुंह मोड़ लेते हैं। हमें मालूम है जब वो कान लगाकर तुम्हारी बात सुनते हैं, मुशरिकीन मक्का के बारे में सारी बातें चल रही हैं। हमें मालूम है कि जब वो कान लगाकर तुम्हारी बात सुनते हैं तो असल क्या सुनते हैं, और जब बैठकर आपस में कानाफूसियां करते हैं तो क्या कहते हैं। ये जालिम आपस में कहते हैं कि ये तो एक जादू का मारा आदमी है जिसके पीछे तुम लोग जा रहे हो। देखो कैसी बातें हैं जो ये लोग तुम पर छांटते हैं। ये भटक गए हैं, इन्हें रास्ता नहीं मिलता। अब आखिरत के हवाले से तीन उनके सवाल आएंगे जो कि वो एजा तंज के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा करते थे। वो कहते हैं जब हम सिर्फ हड्डियां और मिट्टी होकर रह जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा करके उठाए जाएंगे। यानी तुम क्या कहते हो कि जब हम मर जाएंगे मिट्टी में मिल जाएंगे तो क्या नए सिरे से उठाए जाएंगे। फिर अल्लाह ताला ने कहा आयत नंबर 50 में, इनसे कहो तुम पत्थर हो या लोहा भी हो जाओ, तुम पत्थर या लोहा भी हो जाओ, या इससे भी ज्यादा सख्त कोई चीज जो तुम्हारे मन में जिंदगी से बहुत दूर हो, फिर भी तुम उठकर रहोगे। वो जरूर पूछेंगे कौन है वो जो हमें फिर जिंदगी की तरफ पलटा कर लाएगा। जवाब में कहा वो वो जवाब में कहो वही जिसने पहली बार तुमको पैदा किया। वो सर हिला हिला कर पूछेंगे अच्छा तो ये होगा कब। तुम कहो क्या अजब वो वक्त वो करीब ही आ लगा हो। आयत नंबर 52, जिस दिन वो तुम्हें पुकारेगा तो तुम उसकी हमद करते हुए उसकी पुकार के जवाब में निकल आओगे। यानी आखिरत के दिन तुम्हारा गुमान उस वक्त ये होगा कि हम बस थोड़ी देर ही इस हालत में पड़े रहे हैं। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदों से कह दो कि जवान से वो बात निकाला करें जो बेहतरीन हो। असल में शैतान है जो इंसानों के बीच बिगाड़ डलवाने की कोशिश करता है। हकीकत ये है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। यानी अपनी जवान का आपको अपनी जवान की हिफाजत करनी है, इससे बेहतरीन बात ही निकालनी है, क्योंकि शैतान तो यही चाहता है कि आपस में तुम्हारे ताल्लुकात बिगड़े, वो बिगाड़ फैलाना चाहता है। फिर अल्लाह ताला आयत नंबर 54 से बताएंगे कि अल्लाह ताला तमाम इंसानों के हालात से वाकिफ है। तुम्हारा रब तुम्हारे हाल को खूब जानता है। वो चाहे तो तुम पर रहम करे और चाहे तो तुम्हें अजाब दे दे। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुमको लोगों पर हवालेदार बनाकर नहीं भेजा है। तेरा रब जमीन और आसमान के रहने वालों को ज्यादा जानता है। वो हमने वो कुछ पैगंबरों को वो कुछ से बढ़कर रुतबे दिए हैं। और हमने ही दाऊद को जुबूर दी थी, यानी दाऊद अलैहिस्सलाम को जो किताब दी थी उसका नाम था वो जुबूर। फिर अल्लाह ताला के महबूब बंदों का हाल आयत नंबर 56 से आएगा। अल्लाह ताला के महबूब बंदों का हाल क्या होता है। इनसे कहो पुकार देखो उन लोगों को जिनको तुम अल्लाह के सिवा अपना कारसाज वो समझते हो। वो किसी तकलीफ को तुमसे ना हटा सकते ना बदल सकते। जिनको ये लोग पुकारते हैं वो तो खुद अपने रब के हुजूर पहुंच हासिल करने का जरिया तलाश कर रहे हैं। यानी वो तो खुद वसीला तलाश करते हैं अपने रब का, वो कुर्ब हासिल करने का जरिया तलाश कर रहे हैं कि कौन उससे ज्यादा करीब हो जाए। और वो उसकी रहमत के उम्मीदवार और उसके अजाब से डरे हुए हैं। यानी जिनको तुम अल्लाह को छोड़कर पुकार रहे हो ना, वो तो अल्लाह के नेक बंदे हैं। वो तो अल्लाह ताला की वो खुद उसका जरिया तलाश करते हैं, उसका कुर्ब हासिल करते हैं, और तुम अल्लाह को छोड़कर उन्हीं की इबादत करने लग गए। फिर अल्लाह ताला ने कहा हकीकत यह है कि तेरे रब का अजाब है ही डरने के लायक, और कोई बस्ती ऐसी नहीं वो जिसे हम कयामत से पहले हलाक न करें या सख्त अजाब न दें। ये खुदा की किताब में लिखा हुआ है। और हमको निशानियों भेजने से नहीं रोका मगर इस बात ने कि इनसे पहले के लोग उनको झुठला चुके हैं। चुनाचे देख लो समूद को हमने एलानियां ऊँटनी ला कर दी और उन्होंने उस पर जुल्म किया। हम निशानियां इसलिए तो भेजते हैं कि लोग उन्हें देखकर डरें। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये मुशरिकीन मक्का जो तुमसे निशानियों की डिमांड कर रहे हैं हम भेज दें, लेकिन इनसे पहले हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि हमने उन्हें पूरी पूरी निशानियां दी हैं। समूद अलैहिस्सलाम की कौम ने खुद देखा कि आप पहाड़ के अंदर से ऊँटनी आ गए, लेकिन उन्होंने फिर भी उसको कत्ल कर दिया। और जब अगर वाज़ेह निशानियां देखने के बाद इंसान फिर नाशुक्री करता है तो अल्लाह ताला का अजाब आता है पूरी कौम पर। फिर अगर नहीं मानोगे तो इसलिए अल्लाह ताला निशानियां नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि तुम निशानियां देखकर भी इंकार कर दोगे और फिर अल्लाह ताला को अजाब वो लेकर आना पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। और अल्लाह ताला के ये आखिरी नबी थे, इसलिए कि अल्लाह ताला ने बता दिया हिदायत की वाज़ेह निशानियां तो मौजूद हैं। इस कुरान पे गौर व फिक्र करो, अल्लाह के रसूल की जिंदगी में गौर व फिक्र करो, कायनात में गौर व फिक्र करो, तुम्हें निशानियां नजर आ जाएंगी।
फिर फिर अल्लाह ताला ने कहा, याद करो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमसे वो कह दिया था कि तेरे रब ने इन लोगों को घेर रखा है, और ये जो कुछ अभी हमने हमने तुम्हें दिखाया है, इसको और उस पेड़ को जिस पर कुरान में लानत की गई है, हमने इन लोगों के लिए बस एक फितना बना कर रख दिया है। हम इन्हें खबरदार पर खबरदार किए जा रहे हैं, मगर हर बार खबरदार करना इनकी सरकशी ही में बढ़ोतरी किया जाता है। और याद करो जबकि हमने फरिश्तों से कहा था कि आदम को सजदा करो। अब इबलीस और आदम अलैहिस्सलाम का वो किस्सा फिर से स्टार्ट होता है सूरह बनी इसराइल में। और याद करो जबकि हमने फरिश्तों से कहा था कि आदम को सजदा करो, तो सबने सजदा किया, मगर इबलीस ने ना किया। उसने कहा, क्या मैं उसको सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से बनाया है? फिर वो बोला, देख तो सही, क्या ये इस काबिल था कि तूने इसे मुझ पर फजीलत दी? अगर तू मुझे कयामत के दिन तक मोहलत दे, तो मैं इसकी पूरी नस्ल की जड़ उखाड़ डालूं, बस थोड़े ही लोग मुझसे बच सकेंगे। यानी शैतान ने कहा, ये आदम को सजदा करवाया, ये तो मुझसे कमतर है, तू मुझे कयामत तक मोहलत दे अल्लाह, मैं इनकी जड़ उखाड़ दूंगा, इनको जहन्नुम का ईंधन बना दूंगा। तो अल्लाह ताला ने भी उसको मोहलत दे दी, जाती है मोहलत है, जा कर तू ये मतलब जो करना है। फिर अल्लाह ने फरमाया, अच्छा तो जा, इनमें से जो भी तेरी पैरवी करे, तुझ समेत इन सब के लिए जहन्नुम ही भरपूर बदला है। आयत नंबर 63 में अल्लाह ताला ने साफ इसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। आयत नंबर 63 में, अच्छा तो जो इनमें से भी तेरी पैरवी करेंगे, वो तुझ समेत इन सब के लिए जहन्नुम ही भरपूर बदला, यानी उन सबको मैं जहन्नुम से भर दूंगा। फिर अल्लाह ताला ने कहा, तू जिसको अपनी दावत से फिसला सकता है फिसला ले, उन पर अपने सवार और प्यादे वो चढ़ा ला, माल और औलाद में उनके साथ वो की साझा लगा, और उनको वादों के जाल में फांस, और शैतान के वादे एक धोखे के सिवा और कुछ भी नहीं। यकीनन मेरे बंदे पर तुझे कोई जोर हासिल ना होगा, और भरोसे के लिए तेरा रब काफी है। अल्लाह ताला ने बता दिया, तू ये जो करना है कर ले, लेकिन मेरे बंदों पर तेरा जोर हासिल नहीं होगा, उन पर तेरा जोर मतलब नहीं चलेगा, और भरोसे के लिए अल्लाह ताला काफी है। फिर अल्लाह ताला के एहसानात अल्लाह ताला गिनवाएंगे अपने एहसानात, और इंसान की नाशुक्री क्या है उसका हमें जिक्र मिलेगा। तुम्हारा हकीकी रब तो वो है जो समुद्र में तुम्हारी वो नाव चलाता है, ताकि तुम उसका फजल तलाश करो। हकीकत यह है कि वो तुम्हारे हाल पर बहुत ही मेहरबान है। जब समुद्र में तुम पर मुसीबत आती है, तो उस एक के सिवा दूसरे जिन जिन को तुम पुकारा करते हो, वो सब गुम हो जाते हैं, मगर जब वो तुमको बचाकर खुशकी वो यानी कि जमीन पर पहुंचा देता है, तो तुम उससे मुंह मोड़ जाते हो। इंसान हकीकत में बड़ा नाशुक्रा है। अच्छा तो क्या तुम इस बात से बिल्कुल वो निडर हो कि अल्लाह कभी खुशकी पर ही तुमको जमीन में धंसा दे, या तुम पर पथराव करने वाली आंधी भेज दे, और तुम उससे बचाने वाला कोई हिमायती ना पाओ? और क्या तुम्हें इसका कोई अंदेशा नहीं है कि अल्लाह फिर किसी वक्त वो समुद्र में तुमको ले जाए, और तुम्हारी नाशुक्री के बदले तुम पर तेज तूफानी हवा भेजकर तुम्हें डुबो दे, और तुमको ऐसा वो कोई ना मिले जो उससे तुम्हारे इस अंजाम की पूछगछ कर सके? यानी इंसान की नाशुक्री क्या है कि जब मुसीबत आती है तो अल्लाह को पुकारता है, और जब मुसीबत चली जाती है तो भूल जाता है, शिर्क करने लगता है। फिर अल्लाह ताला ने कहा, ये तो हमारी मेहरबानी है कि हमने बनी आदम यानी आदम की औलाद को बुजुर्गी दी, और उन्हें खुशकी व तरी में सवारियां दी, और उनको पाकीज़ा चीजों से रोजी दी, और और अपने बहुत से पैदा किए हुओं पर नुमाया बढ़ाई दी। यानी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को अल्लाह ताला ने बढ़ाई दी, अशरफुल मखलूकात बनाया। फिर ख्याल करो उस दिन का जबकि हम हर इंसानी गिरोह को उसके पेशवा के साथ बुलाएंगे, और जिन लोगों को उनका अमाल नामा सीधे हाथ में दिया गया, वो अपना अपना कारनामा पढ़ेंगे, और उन पर जर्रा बराबर भी जुल्म ना होगा। यानी आखिरत में जिनका अमाल नामा सीधे हाथ में मिला, वो तो अपना कारनामा पढ़ेंगे और उन पर जुल्म नहीं होगा, वो जन्नती लोग हैं। और जो इस दुनिया में अंधा बनकर रहा, वो आखिरत में भी अंधा ही रहेगा, बल्कि रास्ता पाने में अंधों से भी वो ज्यादा नाकाम। आयत नंबर 73 से अल्लाह ताला बताएंगे कि जो काफिरों की दुश्मनी है ना, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है, वो कुरान से है। बल्कि असल में ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों ने इस कोशिश में वो कोई कमी उठा नहीं रखी कि तुम्हें फितने में डालकर उस वही से फेर दें जो हमने तुम्हारी तरफ भेजी, वो यानी कि कुरान से।
ताकि तुम हमारे नाम पर अपनी तरफ से कोई बात गढ़ो। अगर तुम ऐसा करते हो तो वो जरूर तुम्हें अपना दोस्त बना लेते हैं। यानी अल्लाह के रसूल से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो तो कहता हमारी कौम के लोग हैं। हाँ, हमारे बुतों को भी थोड़ी सी अहमियत दो, इनका भी जिक्र करो। तुम जो दीन लाए हो और ये हमारा जो दीन है, इनको मिला लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, बीच का रास्ता निकाल लो। आप तो कुरैश के सरदारों में से हैं, बनी हाशिम में से हैं, आप तो अल्लाह के रसूल से उनकी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उनकी कुरान से दुश्मनी थी। यार ये कैसा कुरान है, ये तो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत के लिए कहता है, हमारे बुत कहाँ जाएंगे। और इसीलिए ऑफर भी रखेगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। फिर अल्लाह ताला ने कहा आयत नंबर 74 में, और और नामुमकिन ना था कि अगर हम तुम्हें मजबूत ना रखते तो तुम उनकी तरफ कुछ ना कुछ झुक जाते, लेकिन अगर तुम ऐसा करते तो हम तुम्हें दुनिया में भी दोहरे अजाब का मजा चखाते और आखिरत में भी दोहरे अजाब का, फिर हमारे मुकाबले में तुम कोई मददगार ना पाते। अब मुशरिकीन के लिए धमकी आएगी जो कि सच साबित हुई थी, और ये लोग इस बात पर भी तुले रहे हैं कि तुम्हारे कदम इस सरजमीन से उखाड़ दें और और तुम्हें यहाँ से निकाल बाहर करें, लेकिन अगर ये ऐसा करेंगे तो तुम्हारे बाद ये खुद ज्यादा देर ना ठहर सकेंगे। देखें कितनी अलग अलग अल्लाह ताला ने ये धमकी दी है। अगर ये तुम्हें निकालेंगे तो खुद भी ज्यादा देर तक यहाँ नहीं ठहर सकेंगे, और हमने देखा फतेह मक्का हुई है। और ये काम करने का हमारा मुस्तकिल तरीका है जो उन सब रसूलों के मामले में हमने बरता है जिन्हें तुमसे पहले हमने भेजा था, और हमारे काम के तरीकों में तुम कोई बदलाव ना पाओगे। फिर आयत नंबर 78 में अल्लाह ताला ने कहा, 5 वक्त की नमाजों का हुक्म हमें आयत नंबर 78 में 78 में मिलता है। नमाज कायम करो सूरज के ढलने से लेकर रात के अंधेरे तक। फज्र के कुरान को लाजिम करो क्योंकि फज्र का कुरान मशहूद यानी जिस पर गवाही दी गई हो। तो ये हमें बता दिया कि सूरज के ढलने से लेकर रात के अंधेरे तक आपको नमाज कायम करनी है, और आपको फजर की नमाज पढ़नी है, और फजर में आपको कुरान लाजिम करना है, यानी फजर के कुरान को आप लाजिम करें अपने ऊपर। क्योंकि फजर का कुरान पढ़ना ऐसा है जिस पर वो गवाही दी जाती है, फरिश्ते वो जाते हैं अल्लाह ताला के हुजूर, फजर और असर में ड्यूटी चेंज होती है ना, तो फरिश्ते जाकर ड्यूटी में कहते हैं हाँ मेरा तेरा बंदे ने नमाज भी पढ़ी और कुरान वो पढ़ रहा था जब मैं उसे लास्ट टाइम छोड़ कर आया। तो ये हमें देखना चाहिए अल्लाह ताला ने फजर में कुरान पढ़ने की कितनी अहमियत रखी है। और हम सुबह सोते रहते हैं, हम फजर पढ़ के सो जाते हैं और हम उठते हैं 10 बजे 11 बजे, तो हमें अपना रूटीन हमें चेंज करना चाहिए। फजर के बाद तो मुसलमान को नहीं सोना चाहिए, वो कुरान पढ़े और फिर अपने काम करे, और रात को ईशा के बाद वो मतलब सो जाए, रात को जल्दी सोने की आदत बनाए, और सुबह फजर के बाद उसको कुरान पढ़ना चाहिए। फिर अल्लाह ताला ने कहा आयत नंबर 79 में, और रात को तहज्जुद पढ़ो, ये तुम्हारे लिए नफिल है, यानी जो तहज्जुद की नमाज है ये नफिल है। नामुमकिन नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद यानी तारीफ के काबिल मकाम पर पहुंचा दे। तहज्जुद पढ़ने से इंसान को अल्लाह ताला उसको बुलंदी अता करता है, उसके उसके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करता है, तारीफ के काबिल मकाम तक उसको दुनिया में भी अल्लाह ताला पहुंचा देता है और आखिरत में तो पहुंचाएगा ही। आयत नंबर 80 से अल्लाह ताला बताएंगे, ये जो हिजरत होगी ये तुम्हारे वो गलवाए दीन का आगाज है, यानी दीन गालिब होकर रहेगा इस हिजरत के बाद। और दुआ करो कि परवरदिगार मुझको जहां भी तू ले जा सच्चाई के साथ ले जा, और जहां से भी निकाल सच्चाई के साथ निकाल, और अपनी तरफ से एक इख्तिदार को मेरा मददगार बना दे, और ऐलान कर दो कि हक आ गया और बातिल मिट गया, बातिल तो मिटने ही वाला है। हम इस कुरान के उतरने के सिलसिले में जो कुछ उतार रहे हैं, जो मानने वालों के लिए तो शिफा और रहमत है, मगर जालिमों के लिए घाटे के सिवा और किसी चीज में बढ़ोतरी नहीं करता। यानी कुरान में जो कुछ है, जो मानते हैं उनके लिए तो रहमत है, शिफा है, लेकिन जो जालिम है, जो मानकर नहीं देते, उनके दिलों में तो घाटे के सिवा कुछ भी पैदा नहीं करता। इंसान का हाल ये है कि जब हम उसे नेमत देते हैं तो वो ऐंठता और पीठ मोड़ लेता है, और जब जरा मुसीबत का सामना होता है तो मायूस होने लगता है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से कह दो कि हर एक अपने तरीके पर चल रहा है, अब ये तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है कि सीधी राह पर कौन है। ये लोग तुमसे रूह के बारे में पूछते हैं, कहो ये रूह मेरे रब के हुक्म से आती है, मगर तुम लोगों ने इल्म का थोड़ा हिस्सा ही पाया है। यानी रूह की हकीकत के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया था, तो अल्लाह ताला ने जवाब दे दिया, ये तो रूह जो है ये तो अल्लाह ताला का हुक्म है। यानी इंसान के जिस्म से ऐसी क्या चीज़ है जिसके निकलने के बाद उसका जिस्म सड़ने और गलने लगता मतलब लगता है।
ایسی کیا چیز ہے جس کو ہم جان کہتے ہیں کہ اس کی جان نکل گئی؟ وہ ہے روح. اور روح کو بتایا یہ تو اللہ کا حکم ہے. جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو یہ نکال لی جاتی ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ زندہ ہیں. آپ ایک ہفتے تک بھی اگر سوتے رہیں گے اور آپ کی سانسیں چل رہی ہیں تو آپ کی باڈی گلے گی نہیں. لیکن جیسے ہی آپ کے اندر سے ایک چیز نکلتی ہے اور آپ زمین پہ لیٹے ہیں، 24 گھنٹے کے اندر سے ہی آپ کے اندر سے بدبو آنے لگے گی. تبھی تو ہم فریج میں رکھتے ہیں باڈی کو. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز نکلتی ہے؟ یہ انسان کے اندر کیا پارٹس ہے کہ جس کے اندر سے وہ نکلنے کے بعد وہ انسان مر جاتا ہے، ڈیڈ ہو جاتا ہے؟ وہ روح ہے. جیسے ایک کار ہے، اگر اس کا کوئی پارٹ خراب ہوا تو آپ اس کا پارٹ چینج کر دو. ایسے ہی انسان ہے، انسان کا کوئی پارٹ خراب ہو رہا ہے تو آپ چینج کرتے رہو، لیکن یہ مرتا کیوں ہے؟ اس کے اندر کیا چیز ہے ایسی؟ وہ ہے روح. وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جب وہ آتا ہے تو یہ جسم ہے یہ ڈیڈ ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 86 میں کہا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو دیا ہے، یعنی کہ قرآن. پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے. یہ جو وہ وہ یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے، یعنی قرآن تمہارے رب کی رحمت سے ہی ملا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کی مہربانی تم پر بہت بڑی ہے. پھر وہی چیلنج آتا ہے قرآن کا کہ قرآن جیسا کلام کوئی بھی پیش نہیں کر سکتا. جو چیلنج سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے، سورہ اعراف میں بھی گزر چکا ہے، اب سورہ بنی اسرائیل میں وہی چیلنج آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو وہ نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں. یعنی تمام کے تمام انسان بیٹھ جائیں، تمام کے تمام جن مل جائیں، ایک اللہ کو چھوڑ کر جس کی مدد وہ لینا چاہیں لے لو، اس قرآن جیسی کوئی سورہ ہی بنا لاؤ، تو یہ ہرگز اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر زیادہ تر لوگ وہ انکار ہی پر جمے رہے. یعنی اللہ تعالیٰ اتنی طرح طرح سے لوگوں کو سمجھا رہا ہے لیکن پھر بھی لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ جو ان کے فرمائشی جو معجزات تھے مشرکین مکہ کے، ان کی لسٹ ہمیں دیں گے. اور انہوں نے کہا، ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ نہ جاری کر دے. یعنی یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم تمہیں نبی تب مانیں گے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری کر کے دکھاؤ، یا تیرے لیے وہ کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں بہا دے. یعنی یا تو ہمیں یہ کر کے دکھاؤ، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے. یا تو یہ کر کے دکھاؤ، یا اللہ اور فرشتوں کو روبرو ہمارے سامنے لے آئے. یا تو اللہ یا فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ، وہ تب ہم تمہیں رسول مانیں گے. یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے. آیت نمبر 93. جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں. یعنی ہمارے اوپر بھی ایک ایسی تحریر آئے جس کو ہم خود پڑھیں. یہ ان کے معجزات تھے جو وہ فرمائش کر رہے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ کا جواب آئے گا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ میں تو ایک انسان ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لایا ہوں. ماننا ہے مانو، نہ ماننا ہے نہ مانو. جو معجزات ہیں وہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا لوگوں کے سامنے. وہ جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کی اسی بات نے، کیا اللہ نے انسان کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا؟ یعنی پہلے کے انسان کی گمراہی کیا تھی کہ وہ انسان کو پیغمبر نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے یار آپ پیغمبر ہو تو انسان کیسے ہو سکتے ہو؟ آپ تو نہیں ہو سکتے انسان. انہیں اس بات پہ تعجب ہوا کہ بھئی ایک انسان پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے، اس لیے وہ ایمان لا کر نہیں دیے. اور آج کے ٹائم میں اس کے اپوزٹ ہو گیا. ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ پیغمبر ہیں تو یہ انسان کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں وہ انسان ہے. ہم نے مطلب کہ وہ کیا کرا، پیغمبروں کو ہم نے انسان نہیں مانا. ہم نے کہا یہ نوری مخلوق ہیں، اور اسی پہ اختلاف ہے، نور و بشر کے جھگڑے ہیں امت میں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 95 میں، ان سے کہو، اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے وہ چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے. اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو فرشتوں کی ہدایت کے لیے فرشتے کو بھیجتے. لیکن زمین میں انسان چل رہے ہیں تو انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تاکہ وہ ایک رول ماڈل بنے ان کے لیے، ان کے پاس کوئی عذر نہ رہے
کہ ہم تو اس ہدایت پہ عمل کر ہی نہ سکتے تھے۔ انسان یہ کہہ سکتا نا، تو نے تو فرشتوں کو پیغام دے کر بھیج دیا، وہ اس پہ تو صرف فرشتہ ہی چل سکتا تھا، لیکن ہمیں تو نے بڑا کمزور بنایا، ہم سے تو نہیں ہوا عمل، ہمیں کیوں سزا دے رہا ہے؟ تو ایک انسانوں کو ہی بھیجا تاکہ وہ چل کر بھی دکھائے اور حجت تمام ہو جائے کہ انسان اس پیغام پہ عمل کر سکتے ہیں، پوری ایک سوسائٹی قائم کر کے دکھائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے بیچ بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال کی خبر رکھتا ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ وہ جس کو اللہ راستہ دکھائے وہی راستہ پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی اور مددگار وہ نہیں پائے گا، وہ نہیں پا سکتا۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے دن اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے، گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا، کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور مٹی ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا؟ وہ کیا ان کو یہ نہ سوجا کہ جس خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے۔ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا طے ہے، مگر ظالم اس پر اڑے ہوئے ہیں کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور ان کو روک رکھتے، حقیقت میں انسان بڑا تنگ دل ہے۔ آیت نمبر 101 سے فرعون کی ہٹ درمی اور اس کی بربادی کا ذکر آئے گا۔ ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں دی، یعنی 9 نشانیاں ایسی تھی جو ایک کے بعد ایک فرعون پر عذاب آیا، ٹھیک ہے، عذاب آتا تھا اور فرعون کے لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا تھا، تو فرعون اور اس کے درباری آتے تھے، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اگر یہ عذاب یہ ٹل جائے گا آپ کی دعا سے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو کیا ہوتا تھا، ایک عذاب آیا جیسے مینڈک کا عذاب آیا، ٹڈی دل کا عذاب آیا، مختلف جو عذاب ان پر آئے، اور وہ ہر بار موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، دعا کروائی، وہ عذاب اللہ تعالیٰ نے ٹالا، اور وہ پھر کہہ رہے ہیں ہم تو نہیں لا رہے ایمان، یعنی وہ پھر اڑ گئے۔ تو وہی بات ہے، ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں دی تھی جو صاف طور سے دکھائی دے رہی تھی۔ اب یہ تم وہ خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب موسیٰ ان کے یہاں آئے تو فرعون نے وہ یہی کہا تھا نا کہ یہ موسیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک جادو کا مارا آدمی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کو وہ کیا کہہ دیا تھا، جادو۔ آج تم آج تم مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہو نشانیاں دکھاؤ، اگر انہوں نے بھی نشانیاں دکھا دی تو جو مان کر نہیں دینے والے وہ نشانیاں دیکھ کر بھی نہیں مانیں گے، وہ اس کو بھی کہہ دیں گے یہ جادو ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تو موسیٰ علیہ السلام نے تو ڈائریکٹ وہ نشانیاں دکھائی تھی نا، لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں مانا ہے، ان کو جادوگر کہہ دیا تھا۔ تو موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا، آیت نمبر 102، موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا، تو خوب جانتا ہے کہ یہ سوجھ بوجھ بڑھانے والی نشانیاں زمین اور آسمان کے رب کے سوا وہ کسی نے نہیں اتاری، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ فرعون تو ضرور شامت کا مارا ہوا ایک آدمی ہے۔ آخرکار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا ڈبو دیا، یعنی فرعون کو ڈبو دیا اس کے ساتھیوں کے ساتھ۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آ پہنچے گا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے۔ اب قرآن کریم کی عظمت اور اس کی تاثیر کے بارے میں بیان آئے گا آخر تک۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی عظمت ہمیں اس سورہ بنی اسرائیل میں بتائیں گے، آیت نمبر 105 سے۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ اتارا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ اترا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے خوشخبری دے دو اور جو نہ مانے اسے خبردار کر دو۔ اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، یعنی خطبوں کی شکل میں قرآن اتارا ہے، ایک بار میں نہیں، 23 سال کی زندگی میں یہ قرآن اترا ہے، اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع موقع کی ترتیب کے ساتھ اتارا ہے، یعنی جس موقع پہ جس ہدایت کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہدایت آ جایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا، وہ قرآن پہ عمل کرنا بھی آسان تھا۔ ایک بار میں ہی اگر قرآن نازل کر دیا جاتا تو بڑا مشکل ہو جاتا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 107، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، اور منہ اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو جادوگر آئے تھے چیلنج لے کر، وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے تھے۔ آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اچھے نام ہیں، جتنی بھی صفات اچھی ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 110، ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں، اور اپنی نماز نہ زیادہ اونچی آواز سے پڑھو اور نہ زیادہ دھیمی آواز سے، ان دونوں کے بیچ اوسط درجے کا لہجہ اپناؤ۔ اس میں دو کام اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ ایک تو مشرکین مکہ کا یہ اعتراض تھا، یہ رحمان کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ رحمان کون ہے؟ وہ رحمان تو ہم کسی کو نہیں جانتے، اللہ نام، اللہ ورڈ کو جانتے تھے، رحمان کو نہیں جانتے تھے۔ تو بتا دیا کہ جتنے بھی اچھے صفاتی نام ہیں سب اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، سب اسی کے لیے ہیں۔ اور پھر وہ نماز میں بتا دیا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، کہ نماز میں وہ نہ تو آپ کی آواز وہ زیادہ اونچی ہو، بلند ہو کہ دوسروں کو بھی سنائی دینے لگے، اور نہ ہی اتنی دھیمی ہو کہ تمہیں خود کو بھی سنائی نہ دے، ان دونوں کے بیچ اوسط درجے کا لہجہ اپناؤ، یعنی آ، اتنی آواز سے آپ کو نماز ادا کرنی ہے کہ وہ کم سے کم آپ کے کانوں تک آئے، آپ پڑوسی کو نہ پہنچے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں مسجد میں آتے ہیں اور پوری ان کی سورہ فاتحہ سنائی دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ کون سی سورہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی سنائی دیتی ہے۔ آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے، دوسرا آدمی بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، تو اتنی تیز نہیں پڑھنی چاہیے کہ دوسرا ڈسٹرب ہو، ہاں اتنی تیز پڑھیں کہ اپنے کانوں تک آئے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، آیت نمبر آخر 111، آیت نمبر 111، اور کہو وہ تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ بے بس ہے کہ کوئی اس کا سہارا ہو، اس کی بڑائی بیان کرو، سب سے اونچے درجے کی بڑائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں توحید ہمیں بیان کر دی، اور اس کے بعد ہماری سورہ کہف کا آغاز ہوگا۔ سورہ کہف قرآن میں 18 نمبر کی سورہ ہے، سورہ کہف 18 نمبر کی سورہ ہے، اور اس میں 110 آیتیں ہیں سورہ کہف میں۔ اور اس کا جو نام اللہ تعالیٰ نے کہف رکھا ہے، سورہ کہف میں جو سورہ کہف کا نام کہف رکھا ہے، وہ اسی سورہ کی آیت نمبر 9 سے لیا گیا ہے، جہاں پہ کہف والے یعنی وہ گفا والوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ سورہ کہف کے متعلق کچھ آیتیں، کچھ وہ حدیثیں بھی ہیں، اور سورہ کہف آیت نمبر 1 میں بھی ہمیں ایک بات بتائی گئی ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 1، ایک حدیث پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی سورہ ہے جس میں جو یہودی تھے ان کی ڈیمانڈ پر یہ سورہ اتاری گئی تھی، یعنی انہوں نے کچھ کوشچن پوچھے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جواب دیا تھا۔ سورہ کہف کے تعلق سے جو شروعات کی جو 10 آیتیں، آیت نمبر 1 سے لے کے 10 تک، اس کے بارے میں یہ ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی سورہ کہف کی پہلی وہ 10 آیتوں کو یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ یعنی انسان چاہتا ہے دجال کے فتنے سے بچنا، تو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتوں کو وہ یاد کر لے، ان کی خوب تلاوت کرے، اور جب دجال اگر اس کی زندگی میں آ جائے تو ان آیتوں کو وہ مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھے تو وہ انشاءاللہ دجال کے فتنے سے بچا رہے گا۔ سورہ کہف کی شروعات کی 10 آیتوں کی فضیلت یہ ہے۔ اور پوری سورہ کہف کی اگر میں آپ کو فضیلت بتاؤں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ اور جمعے کا دن میں آپ کو بتا دوں کہ جمعرات کی جو مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی کہ جمعرات کے دن مغرب کے ٹائم سے اور جمعے کی مغرب تک، اس کے درمیان آپ وہ کبھی بھی سورہ آپ کہف پڑھیں گے تو یہ فضیلت آپ کو مل جائے گی۔ تو آج کے دن ہے، آج بھی تو جمعرات ہے، اور جمعرات کی مغرب سے یہ ٹائم لگ چکا ہے، اور الحمدللہ اسی ٹائم پہ ہماری سورہ کہف آج سٹارٹ ہو رہی ہے، جمعے کا دن لگ چکا ہے اسلام کے حساب سے، اور اگلی مغرب تک ہم سورہ کہف اگر پڑھیں تو یہ بڑی فضیلت والی ہے، اللہ تعالیٰ نور قائم کر دے گا۔
अगले जुम्मे तक हमारे लिए, यानी हमें सीधा रास्ता अल्लाह ताला दिखाता रहेगा। तो इतनी बड़ी फजीलत है सूरह कहफ की पढ़ने की। और हमारी क्लास में भी ये जुम्मे के दिन ही अल्हम्दुलिल्लाह सूरह कहफ का मुताला इसका स्टार्ट करेंगे, जुम्मे के दिन ही। ये अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इसे जुम्मे के दिन ही हमारे दौरा कुरान क्लास में अल्लाह ताला ने इसे रखा। सूरह कहफ के सूरह कहफ से कुरान में उन सूरतों का आगाज होगा, उन मक्की सूरतों का वो आगाज होगा जो तीसरे दौर में नाजिल हुई, यानी मक्की जिंदगी के तीसरे दौर में सूरह कहफ ये नाजिल हुई हैं। और यहाँ से उन्हीं सूरतों का सिलसिला स्टार्ट होगा। तीसरा दौर क्या था, मैं आपको रिमाइंड करा दूं। पहला दौर जब खुफिया तौर पे दावत दी गई शुरू के 3 साल, फिर बाद में 2 साल तक एलानिया दावत दी गई, लेकिन जुल्म ज्यादती स्टार्ट नहीं हुई। सिर्फ अपनी जबान से मुशरिकीन मक्का ने टॉर्चर किया। लेकिन जब देखा कि मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो फिर उन्होंने जुल्म ज्यादती स्टार्ट कर दिया, यानी 5 नबवी से लेकर 10 नबवी तक। और फिर जब वो जुल्म ज्यादती स्टार्ट हुई तो मुसलमान हफ्सा की तरफ हिजरत कर गए, यानी 6 नबवी में हफ्सा की तरफ हिजरत भी करी 70 मुसलमानों ने, जिसमें से हजरत उस्मान भी थे, और मुशरिकीन मक्का के जुल्म से बचने के लिए। और ये तीसरे दौर में मुसलमानों पे बहुत आजमाइश आई, और बहुत आजमाइशों का ये दौर था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोशल बाइकआउट इस दौर में किया गया। उन्हें 3 साल तक सोशल बाइकआउट किया, और शेब अबी तालिब में, यानी अबी तालिब की घाटी में पूरे खानदान को रहना पड़ा। लेकिन अबू तालिब थे और अम्मी खदीजा का जो खानदान था वो एक बड़ी शख्सियत थी। इनकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौर में सरवाइव कर गए, दो शख्सियत की वजह से, जो कोई हाथ डालने वाला इन पर नहीं था। एक अबू तालिब थे और दूसरे अम्मी खदीजा थी। और जैसे ही अ, अबू तालिब का भी की वफात होती है और अम्मी खदीजा भी अपने रब के पास वो चली जाती हैं, तो ये दौर, तीसरा दौर ख़त्म हो जाता है वो 10 नबी में, और मुसलमानों पे फिर से और जुल्म जाती और यहाँ तक कि हिजरत की नौबत आ जाती है। इस सूरा में हमें इशारा मिलता है कि मुशरिकीन मक्का ने वो यहूदियों के कहने पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान लेने के लिए 3 क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन उनका था, असहाबे कहफ कौन है? कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो हमें बताइए कहफ कौन है, असहाबे कहफ कौन है, ये गुफा वाले कौन है। दूसरा उनका क्वेश्चन था, वो खिज्र के वो किस्से की क्या हकीकत है, यानी वो खिज्र अलैहिस्सलाम का किस्सा आएगा इसमें, उसकी क्या हकीकत है। तीसरा उनका सवाल था, जुल्करनैन का किस्सा क्या है। ये 3 क्वेश्चन पूछे थे, और ये उन्होंने पूछे थे ईसाइयों और यहूदियों के कहने पर, क्योंकि ये जो बात थी ये अहले किताब से ही वो जुड़ी हुई थी, और मक्का में इन किस्सों को कोई नहीं जानता था। तो उन्होंने इम्तिहान लेना चाहा। अगर इन्होंने बता दिया तो ये सच्चे नबी हैं, और अगर ये बता नहीं पाए इन तीनों किस्सों की हकीकत, तो इसका मतलब ये झूठे नबी हैं और ये बात साबित हो जाएगी। तो ये एक चैलेंज के तौर पे था। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, ना सिर्फ ये किस्से बताए, बल्कि उन किस्सों को मक्का के हालात पर चस्पा कर दिया। जैसे सूरह यूसुफ को ना सिर्फ सूरह यूसुफ का मतलब बताया था, बल्कि उसको मुशरिकीन मक्का के हालात पर चस्पा कर दिया। ऐसे ही अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ का किस्सा बताया, और मक्का के जो हालात थे उस पर चस्पा कर दिया कि वो कहफ वाले थे, उन्होंने तौहीद के लिए उन्होंने पूरा मुल्क को छोड़ दिया, गुफा में वो रहने लगे, और 3 साल तक अल्लाह ताला ने उन्हें सुलाया, लेकिन वो तौहीद पे कायम रहे। लेकिन आज तुम ही हो कि तुम उस तौहीद को मानने से इनकार करते हो। वो खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा बताया, और बताया कि देखें, जो तुम वो जाहिर की निगाह से देख रहे हो, हकीकत वो नहीं है, हकीकत अल्लाह ताला की निगाह निगाह में कुछ और होती है। फिर जुल्करनैन का भी किस्सा बताया, और उनको भी मक्का के हालात पर की चस्पा वो कर दिया गया। तो ये 3 किस्से इसमें आएंगे, और शुरू की 10 आयतें तो दज्जाल के फितने से महफूज रखने वाली आयतें हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सूरह की कहफ, और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी सूरह कहफ आज ही मुकम्मल कर दे, और क्योंकि आज ही इसे पढ़ने की बड़ी फजीलत है। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे पर यह किताब उतारी, और उसमें कोई वो टेढ़ न रखी, ठीक ठीक सीधी बात कहने वाली किताब, ताकि वो लोगों को अल्लाह के सख्त अजाब से खबरदार कर दे, और ईमान लाकर भले काम करने वालों को खुशखबरी दे दे कि उनके लिए अच्छा बदला है जिसमें वो हमेशा रहेंगे। और उन लोगों को डरा दे जो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है। इस बात का ना उन्हें कोई इल्म है, और ना उनके बाप दादाओं को था। बड़ी बात है जो उनके मुंह से निकलती है, वो सिर्फ झूठ बकते हैं। अच्छा, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद तुम इनके पीछे गम के मारे अपनी जान वो खो देने वाले हो, अगर ये इस तालीम पर ईमान न लाए।
यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हो मतलब कि हो जाया करते थे कि ईमान क्यों नहीं लाते, इतनी तो निशानियां हैं अल्लाह ताला की, तो गमगीन रहते थे। तो उसी चीज का अल्लाह ताला ने जिक्र करा। फिर अल्लाह ताला ने कहा आयत नंबर 7 में बता दिया मैं दुनिया की जिंदगी की हकीकत क्या है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं वो सच तो ये है कि जो कुछ वो सरो सामान भी जमीन पर है उसे हमने जमीन की जीनत बनाया है ताकि इन लोगों को आजमाए कि इनमें से कौन बेहतर अमल करने वाला है। यानी दुनिया का अट्रैक्शन तो अल्लाह ताला ने रखा है, दुनिया की मोहब्बत अल्लाह ताला ने रखी है ताकि तुम्हें आजमाए तुम में से बेहतर अमल करने वाला कौन है, ये है। आखिरकार इस सब को हम एक वो चटियल मैदान बना देने वाले हैं। आयत नंबर 9 से असहाब कहफ का वाकया स्टार्ट होगा। असहाब कहफ के बारे में मैं आपको बता दूं कि असहाब कहफ वो कहते हैं गुफा वालों को, ये कुछ नौजवान थे जो अल्लाह ताला की तौहीद पे ईमान लेकर आ गए थे अपनी कौम में से, और अल्लाह ताला की इबादत वो करने लगे थे, सिर्फ अल्लाह ताला को मानते थे वो, और उनकी कौम बड़ी बुत परस्त थी। लेकिन हुआ क्या कि उनकी कौम ने इनका रहना दूभर कर दिया, इनकी जान के पीछे पड़ गए, और इन्होंने बादशाह के सामने अलल ऐलान तौहीद का ऐलान कर दिया कि हम सिर्फ एक रब को मानते हैं। और बादशाह को भी इसकी वो खबर हो गई, तो इनकी जान के पीछे वो लोग पड़ गए, और ये लोग फिर अपनी जान बचाने के लिए गुफा में जाकर वो छुपे। अल्लाह ताला ने उन्हें वहीं 300 साल के लिए सुला दिया, और 300 साल बाद उन्हें जगाया, और उन्होंने आपस में डिस्कशन किया कि जाइए बाहर से कुछ खाने पीने का सामान लाइए और देखिएगा कि कोई आपको पहचान न ले। तो वो बाहर जाते हैं, और वो सिक्के उनके पास होते हैं ना वो उन्हें देते हैं ना, तो वो सिक्के वहां चलते नहीं है। वो कहते हैं ये सिक्के तो 300 साल पहले चला करते थे। और जब वो मतलब कि वापसी आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि भाई हम 300 साल बाद आए हैं, और वो कि जिनको वो सिक्के देते हैं उनकी उनकी खबर वो वहां तक पहुंचाते हैं, और वो सबके सब गुफा में जाते हैं। तो वो पहचान लेते हैं कि हाँ 300 साल पहले था, लेकिन अब वहां पर सब ईमान वाले हो चुके थे, और वो 300 साल बाद अल्लाह ताला ने उनको जगाया। तो इसमें एक निशानी आती है आखिरत की कि अल्लाह ताला ऐसे तुम्हें मरने के बाद भी जिंदा करेगा। और फिर उन्हें वो गौर व फिक्र करना था इस बात पे, लेकिन उन्होंने क्या करा, उस कौम ने, जब वो असहाबे कहफ थे, अल्लाह ताला वो क्या होता है कि वो शख्स दोबारा गुफा में आते हैं, और अल्लाह ताला उन्हें फिर हमेशा के लिए उनकी रूह कब्ज कर लेता है, यानी उठाकर, और वो निशानी लोगों को दिखाकर अल्लाह ताला उनकी रूह कब्ज कर लेता है। और फिर उन लोगों ने क्या करा, उस पर मकबरा बना दिया। यानी उन्हें जिस वक्त उन्हें सोचना चाहिए था कि ये कितनी बड़ी निशानी है, अल्लाह ताला की आखिरत की दलील है, तो उस वक्त उन्होंने उस पर मकबरा बना दिया और उनको इबादत की जगह उन्होंने बना लिया। यानी कौम की नाशुक्री भी हमें देखने को मिलेगी। तो यही असहाबे कहफ का की किस्सा है जो कि हमें अभी आयत नंबर 9 से मिलेगा। अल्लाह ताला ने कहा तो क्या तुम समझते हो कि वो गार और कतवे यानी शिलालेख वाले हमारी कोई बड़ी अजीब निशानियों में से थे। जब उन वो कुछ नौजवानों ने गार में पनाह ली और उन्होंने कहा कि ये परवरदिगार हम पर अपनी खास मेहरबानी कर और हमारा मामला ठीक कर दे। यानी वो गार में उन्होंने पनाह ले ली थी अपनी कौम से बचने के लिए गुफा में। फिर अल्लाह ताला ने कहा तो हमने उन्हें उसी गार में थपक कर वो कई सालों के लिए गहरी नींद सुला दिया। फिर हमने उन्हें उठाया ताकि देखें कि उनके दो गिरोह में से कौन अपनी ठहरने की मुद्दत की ठीक गिनती करता है। यानी वो कई साल तक अल्लाह ताला ने सुला दिया, फिर उन्हें उठा दिया। हम उनका असल किस्सा तुम्हें सुनाते हैं। अब अल्लाह ताला आयत नंबर 13 से उनका किस्सा हमें बयान करते हैं। हम उनका असल किस्सा तुम्हें सुनाते हैं। वो कुछ नौजवान थे, यानी जो ईमान लेकर आए थे ना वो नौजवान थे। ये देखें नौजवानों की कितनी फजीलत है। जवानी की इबादत अल्लाह ताला को ऐसे ही मतलब कि महबूब नहीं है, यही तो टाइम है जो अल्लाह ताला को देना है। बुढ़ापा नहीं देना अल्लाह ताला को, जवानी देनी है। वो कुछ नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान ले आए थे, और हमने उनको हिदायत में तरक्की दी थी। यानी वो ईमान ले आए थे तो अल्लाह ताला ने उनको हिदायत में तरक्की दी, उनके कदम जमा दिए। फिर अल्लाह ताला ने कहा आयत नंबर 14 में हमने उनके दिल उस वक्त मजबूत कर दिए जब वो उठे और उन्होंने ऐलान कर दिया, यानी पूरी कौम में उठे और ऐलान कर दिया हमारा रब तो बस वही है जो आसमान और जमीन का रब है, हम उसे छोड़कर किसी दूसरे माबूद को ना पुकारेंगे। अगर हम ऐसा करें तो बिल्कुल गलत बात करेंगे। यानी उन्होंने ऐलान कर दिया हमारा रब वो है आसमान और जमीन को बनाने वाला। फिर उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा ये हमारी कौम तो कायनात के रब को छोड़कर दूसरे खुदा बना बैठी है। आयत नंबर 15। यानी आपस में एक दूसरे से कहा हमारी कौम तो अल्लाह ताला को छोड़कर दूसरों को अपना माबूद वो बना बैठी है।
ये लोग उनके माबूद होने पर कोई खुली दलील क्यों नहीं लाते? आखिर उस आदमी से बढ़कर जालिम और कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बांधे? अब जबकि तुम उनसे और अल्लाह के अलावा उनके माबूदों से बेताल्लुक हो चुके, तो चलो अब फुलगार में चलकर पनाह लो। यानी जब उन्होंने ऐलान कर दिया बादशाह के दरबार में कि हम नहीं मानते तुम्हारे खुदाओं को, तो फिर उन्होंने कहा है कि अब अपनी कौम से बचना है तो चलो कि पहाड़ों की तरफ चल रहे हैं और गुफा में जाके हम मतलब कि रहेंगे, और इनसे हमें मतलब उनसे वो दूर चले गए थे अपनी कौम से, और वो गुफा में जाके रुक गए थे। तो उसी चीज का जिक्र है कि वो वो जबकि तुम उनसे और अल्लाह के अलावा उनके माबूदों से बेताल्लुक हो चुके हो, तो चलो अब फुलगार में चलकर पनाह लो। तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत का दामन फैला देगा, तुम्हारे काम के लिए सरो सामान की मुहैया कर देगा। तुम उन्हें गार में देखते तो तुम्हें यूं नजर आता कि सूरज जब निकलता है तो उनके गार को छोड़कर वो दाईं तरफ चढ़ जाता है, और जब डूबता है तो उनसे बचकर बाईं तरफ उतर जाता है। यानी जो गार है, उसका जो सिरा था ना, उसका जो मुंह था, वो ऐसी डायरेक्शन में था कि जब सूरज निकलता है ना तो सामने नहीं पड़ता था, और जब वो डूबता था वो तब भी उनके मुंह पर वो नहीं पड़ता था। फिर अल्लाह ताला ने कहा, ये अल्लाह की निशानियों में से एक है। जिसको अल्लाह रास्ता दिखाए वही रास्ता पाने वाला है, और जिसे अल्लाह भटका दे उसके लिए तुम कोई रास्ता दिखाने वाला सरप्रस्त नहीं पा सकते। तुम उन्हें देखकर ये समझते कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सो रहे थे। यानी उस गुफा में उन्हें सुलाया गया है, और उस गुफा में अल्लाह ताला ने इतनी वहशत रख दी थी कि कोई भी उसमें दाखिल नहीं हुआ था 300 सालों तक। और कोई भी उन्हें देखता अंदर को, तो उन्हें ऐसा लगता कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो हकीकत में सो रहे थे। यानी कोई भी उस गुफा में दाखिल नहीं हुआ था। हम उन्हें दाएं बाएं वो करवट दिलवाते रहते थे, यानी अल्लाह ताला उनको दाएं बाएं करवट भी दिलवाते रहते थे सोते सोते। और उनका कुत्ता वो गार के दहाने पर हाथ फैलाए बैठा था। यानी उनके असहाबे कहफ के साथ एक कुत्ता भी था जो कि गार के दहाने पर हाथ वो लगाए बैठा था। अगर तुम कहीं झांक कर उन्हें देखते तो उल्टे पांव भाग खड़े होते। यानी उस गुफा में कोई भी झांकने की कोशिश करता तो वे सब तारी होती, और वो उल्टे पांव भाग जाया करता था, और उन्हें देखकर तुम्हारे अंदर वो डर बैठ जाता था। और ऐसा हुआ भी कि जो भी उधर गुफा में झांकने की कोशिश करता तो उनके अंदर वो डर बैठ जाया करता था। और इसी अनोखे करिश्मे से हमने उन्हें उठा बिठाया ताकि जरा आपस में पूछगछ करें। यानी फिर अल्लाह ताला ने वो कई सौ साल सुलाकर उन्हें फिर वो उठाया। उनमें से एक ने पूछा, यानी वही जो असहाबे कहफ सो रहे थे, वो जो जो कि नौजवान थे, उनमें से एक ने पूछा, वो कहो वो कितनी देर इस हाल में रहे? तो दूसरे ने कहा, शायद दिन भर या उससे कुछ कम रहे होंगे। यानी वो सोए थे, उन्हें पता ही नहीं लगा कितना टाइम गुजर गया, कितने साल हम पे गुजर गए। कह रहे हैं दिन भर होगा या उससे कुछ वो कम। फिर वो बोले, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हमारा कितना वक्त इस हालत में बीता। चलो अब अपने में से किसी को चांदी का ये सिक्का देकर शहर भेजें, और वो देखे कि सबसे अच्छा खाना कहाँ मिलता है, वहां से वो कुछ खाने के लिए लाए। और चाहिए कि जरा होशियारी से काम ले, ऐसा ना हो कि वो किसी को हमारे यहाँ होने की खबर दे बैठे। यानी जब वो जागे, उन्होंने देखा हम कितना सोए होंगे, कि थोड़ा कम या दिन का कुछ हिस्सा, या किसी ने कहा अल्लाह बेहतर जानता है। अब ये चांदी का सिक्का लो, और हमारे लिए एक जने को उन्होंने भेजा कि शहर से कुछ खाने के लिए वो लेकर आए। अब वो शख्स वो शहर में जाएगा, फिर देखिएगा आगे की बात आएगी। अगर कहीं उन लोगों का हाथ हम पर पड़ गया तो बस पत्थरों से मार मार कर हलाक ही कर डालेंगे। आयत नंबर 20। या फिर जबरदस्ती हमें अपनी मिल्लत में वापस ले जाएंगे, और ऐसा हुआ तो हम कभी कामयाबी ना पा सकेंगे। यानी देख के जाना, किसी को खबर ना हो कि हम यहाँ छुपे बैठे हैं। अगर उन्हें खबर हो गई तो वो हमें की मार डालेंगे। अपनी जान बचाने के लिए वो उसमें गार में गए थे। फिर अल्लाह ताला ने कहा है नंबर 21 में, इस तरह हमने शहर वालों को उनकी हालत की खबर पहुंचा दी ताकि लोग जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है, और ये कि कयामत की घड़ी बेशक आकर रहेगी। इस तरह जैसी वो आदमी शहर जाता है, कुछ खाने के लिए लेता है और वो सिक्का देता है, तो वो कहता है भाई ये कौन सा सिक्का है, ये कौन सा सिक्का, ये करेंसी कौन सी दे रहा हो? वो करेंसी थी 300 साल पहले की। अब वो पता लगा कि भाई तुम गुफा वाले हो, क्योंकि उस टाइम पे भी ये इनकी स्टोरी जो है असावे कहफ की, ये गायब हो गए थे, और इनकी स्टोरी फेमस थी कि एक गुफा में है ये। लेकिन उस गुफा में अंदर कोई दाखिल हो नहीं सकता था। और उस टाइम पे जो एम्पायर थी वो रोमन एम्पायर थी।
यानी रोमन एम्पायर उस टाइम पे थी, और वो सब के सब वो क्रिश्चियन मतलब हो चुके थे, ईसाई वो बन चुके थे, वो ईमान लेकर आ गए थे ईसा अलैहिस्सलाम की वो तालीमात पर। तो उन्होंने देखा कि हाँ भाई 300 साल पहले ऐसा था, ये सिक्के तो पिछली एम्पायर में चलते थे, लेकिन अब तो रोमन एम्पायर यहाँ पर है और ये ईसाई एम्पायर है और ये ईमान वाले हैं। और उस टाइम पे जो है ना, वहां पर एक डिस्कशन चल रहा था। डिस्कशन ये कि मरने के बाद जिंदगी है या नहीं, और बड़ी जोरों शोरों पर ये डिस्कशन था, बड़ी डिबेट इस पे होती थी। तो अल्लाह ताला ने उन असहाबे कैफ को ऐसे दौर में उठाया ताकि लोगों के पास एक दलील मिल जाए कि देखो भाई मरने के बाद जिंदगी है, हकीकत है, ये आखिरत की दलील है। तो असहाबे कैफ को अल्लाह ताला ने आखिरत की दलील के तौर पे बता दिया। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा हमने शहर वालों को उनकी हालत की खबर पहुंचा दी, यानी जब वो खाना लेने गया तो शहर वालों को खबर पहुंच गई थी, ताकि लोग जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है और ये कि कयामत की घड़ी बेशक आकर रहेगी। मगर जरा सोचो कि जब सोचने की असल बात ये थी, उस वक्त वो आपस में, आयत नंबर 21, उस वक्त वो आपस में इस बात पर झगड़ रहे थे कि इन कहव वालों के साथ क्या मामला किया जाए। लेकिन जब उन्हें शहर वालों को सोचना यह था कि भाई ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी निशानी है कि आखिरत आएगी, कयामत आएगी, लेकिन वो आपस में वो किस बात पे वो झगड़ रहे थे आपको पता है, वो अल्लाह ताला बताएंगे। वो कुछ लोगों ने कहा इन पर एक दीवार चुन दो, इनका रब ही इनके मामले को बेहतर जानता है, क्योंकि वो असहाबे कहफ वो वापसी कब्र में गए थे और फिर वो अपनी गुफा में गए थे और उनकी रूह अल्लाह ताला ने कब्ज कर ली थी। फिर वो आपस में डिस्कशन कर रहे थे भाई ये निशानी तो हमने देख ली, अब इनके साथ क्या मामला किया जाए। तो वो कुछ लोगों ने कहा इन पर दीवार चुन दो। मगर जो लोग उनके मामले पर गालिब थे, यानी जिनकी चलती थी उनकी कौम में, उन्होंने कहा हम तो इन पर एक इबादत गाह बनाएंगे, हम तो इन पे एक मजार बनाएंगे, ये तो बड़े नेक लोग मिल गए हमें। फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 22 में कहा और कुछ लोग कहेंगे कि वो तीन थे और चौथा उनका कुत्ता था, यानी उनकी तादाद के बारे में इख्तिलाफ है, हमेशा रहा है। तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि वो कितने थे। कि अल्लाह ताला ने कहा वो कुछ लोग कहेंगे कि वो तीन थे और चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ दूसरे कह देंगे कि पांच थे और छठा उनका कुत्ता था। ये सब बेतुकी हाँकते हैं, यानी ये सब झूठ है। और कुछ और लोग हैं कि वो कुछ और लोग कहते हैं कि वो सात थे और आठवां उनका कुत्ता था। वो कहो मेरा रब ही बेहतर जानता है कि वो कितने थे, यानी तादाद पे आप वो ना लड़ें वो कितने थे, उनके वाक्य से आप हिकमत लें, उनके वाक्य से आप नसीहत हासिल करें, इस पे आप ना जाएं कितने थे। और इसमें स्कॉलर्स बताते हैं कि जो आखिर में अल्लाह ताला ने कहा कि वो सात थे और आठवां उनका कुत्ता था, तो इस बात का रद्द नहीं किया, इसका मतलब उनकी तादाद सात थी। पहले की दो बातों का रद्द कर दिया कि वो कहेंगे वो तीन थे और चौथा उनका कुत्ता था, और दूसरे कह देंगे पांच थे और छठा उनका कुत्ता था। फिर अल्लाह ताला ने कह दिया ये सब बेतुकी हाँकते हैं। फिर अल्लाह ताला ने कहा और कुछ लोग वो कहते हैं कि सात थे और आठवां उनका कुत्ता था, तो अल्लाह ताला ने इस बात का रद्द नहीं किया। तो इससे स्कॉलर्स कहते हैं कि वो उनकी तादाद जो थी वो सात थी और आठवां उनके साथ उनका कुत्ता था। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा वो कहो मेरा रब ही बेहतर जानता है कि वो कितने थे, और कम ही लोग उनकी सही तादाद जानते हैं। इसलिए तुम वो सरसरी बात से बढ़कर उनकी तादाद के मामले में लोगों से बहस न करो, और न उनके बारे में किसी से पूछ न और न उनके बारे में किसी से कुछ पूछो। और देखो वो किसी चीज के बारे में वो कभी ये ना कहा करो कि वो कल मैं ये काम कर दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि अल्लाह चाहे, आयत आयत नंबर 24, तुम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि अल्लाह चाहे। अगर भूले से ऐसी बात जबान से निकल जाए तो फौरन अपने रब को याद करो और कहो उम्मीद है कि मेरा रब इस मामले में सच्चाई से ज्यादा करीब की बात मेरी तरफ रहनुमाई वो कर देगा। यानी तुम कभी भी ये मत कहना कि वो कल को मैं ये काम कर दे दूँ, मतलब कि कर दूंगा, ये नहीं कहना। इंशाल्लाह लगा के कहना, ये अल्लाह ताला ने ताकीद की है। सिवाय इसके कि अल्लाह चाहे, यानी आपको बिना इंशाल्लाह के किसी काम को ऐसा नहीं कहना कि मैं कर दूंगा। इसमें क्या है कि ये काम मैं करके रहूंगा, भाई तुम नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ताला ना चाहे। हाँ अगर भूले से तुम कोई बात ऐसी कह दो तो फिर क्या करो, फौरन अपने रब को याद कर लो, फौरन अल्लाह को याद कर लो, हाँ अल्लाह ने चाहा तो मैं ये काम कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे कल को यहाँ से अपनी सिटी से दूसरी सिटी के लिए निकलना है, मेरी गाड़ी में टैंक फुल है, सब कुछ ओके है, सुबह में उठा, लेकिन क्या पता मैं कि वहां पहुंचू ना पहुंचू। तो इसलिए अपने हर काम के साथ इंशाल्लाह आप जरूर लगाया करें।
सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा आएगा हमारे सामने। तो उन्होंने एक बार इंशाल्लाह नहीं लगाया था, तो अल्लाह ताला ने वो काम उनका नहीं किया था, एक नबी का काम नहीं किया था। तो इंशाल्लाह लगाना है मतलब हर बात में, वो जब हम कहें कि ये काम हम करेंगे, यानी किसी काम को करने का इरादा करें, तो उसके साथ इंशाल्लाह लगाना लाजमी है हमारे लिए। फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 25 में कहा, और वो अपने गार में 300 साल रहे, और कुछ लोग मुद्दत के गिनने में 9 साल और बढ़ गए। तुम कहो, अल्लाह उनके ठहरने की मुद्दत ज्यादा जानता है। आसमान और जमीन की सब छिपी बातें उसी को मालूम है। वो क्या खूब है वो देखने वाला और सुनने वाला। जमीन और आसमान में पाई जाने वाली चीजों और जानदारों का कोई खबर रखने वाला उसके सिवा नहीं। वो अपनी हुकूमत में किसी को साझीदार नहीं बनाता। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे रब की किताब में से जो कुछ तुम पर वही की गई है, उसे ज्यों का त्यों सुना दो। कोई उसके फरमानों को बदल देने का इख्तियार नहीं रखता, और अगर तुम किसी के लिए उसमें रद्दोबदल करोगे, तो उससे बचकर भागने के लिए कोई पनाह ना पाओगे। और अपने दिल को उन लोगों के साथ रहने पर मुतमईन करो, जो अपने रब की खुशनुदी के तलबगार बनकर सुबह शाम उसे पुकारते हैं, और उनसे हरगिज निगाह न फेरो। ये वही मजमून आ गया कि जो गरीब लोग हैं, जो खुद आते हैं आपकी तरफ, अल्लाह ताला की वो खुशनुदी की तलब में आपसे क्वेश्चन करते हैं, तो उनसे निगाह नहीं करना, उनको इग्नोर नहीं करना है। क्या तुम दुनिया की जीनत को पसंद करते हो? तो किसी ऐसे आदमी के हुक्मों पर ना चलो, जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है, और जो अपनी मर्जी पर चलने और मनमानी करने में लग गया है, और जिसके काम करने का तरीका इत्तेदाल पर नहीं है। साफ कह दो कि ये हक है तुम्हारे रब की तरफ से। आयत नंबर 29। अब जिसका जी चाहे मान ले, और जिसका जी चाहे इनकार कर दे। हमने इनकार करने वाले जालिमों के लिए एक आग तैयार कर रखी है, जिसकी लपटें उन्हें घेरे में ले चुकी हैं। वहां अगर वो पानी मांगेंगे, तो ऐसे पानी से उनकी खातिरदारी की जाएगी कि जो तेल की तलछट जैसा होगा, उनका मुंह भून डालेगा। सबसे बुरी पीने की चीज और बहुत बुरी आरामगाह है। रहे वो लोग जो मान लें और भले काम करें, तो यकीनन हम भले काम करने वाले लोगों का अज्र बर्बाद नहीं किया करते। उनके लिए सदाबहार जन्नतें हैं, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वहां वो सोने के कंगनों से व, जिन उनके लिए सदाबहार वो जन्नतें हैं, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वहां वो सोने के वो वो कंगनों से सजाए जाएंगे। बारीक रेशम और अतलस व दीवा के हर कपड़े पहनेंगे, और ऊंची मसनदों पर तकिए लगाकर बैठेंगे। बेहतरीन बदला और आला दर्जे की रहने की जगह। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके सामने एक मिसाल पेश करो। दो आदमी थे, उनमें से एक को हमने अंगूर के दो बाग दिए, और उनके चारों तरफ खजूर के पेड़ों की बाड़ लगाई, और उनके बीच खेती की जमीन रखी। अब ये एक मिसाल आएगी। बाग वाले दो आदमी थे, और उनको जो है ना, अल्लाह ताला ने दोनों आदमियों को अलग अलग दो बाग दिए थे। उनकी मिसाल आएगी कि दुनियादार आदमी और आखिरत आखिरत का जो तलब का आदमी है, उनमें क्या अंतर होता है। और अल्लाह ताला ने यहाँ पे हमें जो मटेरियलिज्म है, यानी जो सिर्फ असबाब पे ही पूरा यकीन रखते हैं और अल्लाह ताला पे यकीन नहीं रखते, उस चीज को अल्लाह ताला ने शिर्क कहा है इस वाक्य में। जो असबाब पे पूरी तरह भरोसा करते हैं, जो जो सब कुछ असबाब को ही मानते हैं, तो वो शिर्क करते हैं, यानी मटेरियलिज्म का शिर्क इन मिसाल में हमें मिलेगा। तो दो आदमी थे, उनमें से एक को अल्लाह ताला ने अंगूर के दो बाग दिए थे, और उनके चारों तरफ खजूर के पेड़ों की बाड़ बनाई थी, यानी चारों तरफ उसके बाड़ भी थी खजूर के, और उनके बीच खेती की जमीन रखी थी। दोनों बाग खूब फले फूले, और फलदार होने में उन्होंने कोई वो कमी ना छोड़ी, यानी खूब फल दिया उन बागों ने। उन बागों के अंदर हमने एक नहर जारी कर दी, यानी बाग ऐसी जगह थे कि उनके बीच से एक नहर जारी मतलब कर दी थी, जिसकी वजह से वो खूब फले फूले। फिर अल्लाह ताला ने कहा, और उसे खूब फायदा हासिल हुआ। ये कुछ पाकर एक दिन वो अपने पड़ोसी से बात करते हुए बोला, मैं तुझसे ज्यादा मालदार हूँ। यानी वो इतना, अल्लाह ताला ने उसको नेमत दी, उससे खूब फायदा हुआ। तो ये देखकर उसने क्या कहा, अपने पड़ोसी से उसने डिस्कशन किया कि मैं तुझसे ज्यादा मालदार हूँ, और तुझसे ज्यादा लोगों की ताकत मुझे हासिल है, यानी तुझसे ज्यादा लोग मेरे कहने पे आ जाएंगे जंग में, लड़ाई में।
پھر وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، آیت نمبر 35۔ پھر وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور خود اپنے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی ختم ہو وہ کبھی ختم ہو جائے گی۔ یعنی باغ میں داخل ہوا ایک دن اور کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت مجھ سے کبھی جائے گی، یہ کبھی وہ ختم ہوگی۔ پھر اس نے کہا، اور مجھے امید نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی۔ یعنی کہا مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ دولت، یہ باغ مجھ سے کبھی چھینے گا، اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ قیامت کبھی آئے گی۔ یعنی اس نے قیامت کا انکار کر دیا، اتنا فائدہ اس کو حاصل ہوا تو قیامت کا ہی انکار کر دیا۔ پھر بھی اگر وہ کبھی مجھے اپنے رب کے پاس پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ یعنی کہا پہلی بات تو قیامت آئے گی نہیں، اگر آئے گی تو جیسے میں دنیا میں خوشحال ہوں ایسی میں آخرت میں رہوں گا۔ تو اس کے پڑوسی نے باتیں کرتے ہوئے اس سے کہا، یعنی اس کا جو پڑوسی تھا وہ نیک تھا، اس نے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ یعنی تو اللہ تعالیٰ سے کفر کرتا ہے۔ رہا میں اور اور رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اس کے پڑوسی نے ایک بات کہی کہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اس شخص نے کہاں شرک کیا تھا؟ اس شخص نے دنیا کو ہی حقیقت سمجھ لیا، یعنی اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ باغ مجھ سے کبھی جائے گا، اور مجھے نہیں لگتا قیامت کی گھڑی آئے گی، اگر آئے گی تو اس سے بھی زیادہ اچھی جگہ پاؤں گا میں۔ تو اس کا جو شرک تھا وہ یہ تھا، اس نے اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ لیا تھا، اللہ تعالیٰ کو نے سائڈ کر دیا تھا، اس لیے اس کا مٹیریلزم کا شرک تھا۔ تو وہ تب اس کے پڑوسی نے کہا تھا کہ تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 39 میں کہا، اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ، لا حول و لا قوت الا باللہ، اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو ناممکن نہیں کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر دے دے اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے۔ یعنی پڑوسی نے کہا تو مجھے کمتر پا رہا نا، تو وہ ناممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے باغ پر عذاب بھیج دے اور مجھے تجھ سے بہتر دے دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا تھا، اگر جب وہ باغ میں داخل ہوا تھا تو اتراتا نا اس پر، مطلب کہتا ماشاء اللہ، کہ اللہ کے چاہنے سے یہ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے وہ کسی طرح نہ نکال سکے گا۔ یعنی اس کے پڑوسی نے اس سے ہی یہ بات کہی۔ پھر آخر کار یہ ہوا کہ اس کا سارا پھل مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو، وہ ٹڈی ہوتی ہیں، ان پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ دیکھو پھر کیا ہوا، اس کا جو تھا نا آیت نمبر 42 میں، اس کا اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور اس کا سارا پھل جو ہے نا مارا گیا، اس کا سارا باغ جو وہ ختم ہو گیا۔ اور پھر اس نے ایک جملہ کہا اس شخص نے کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ شرک کہاں کیا تھا اس نے؟ عبادت تو کسی کی نہیں کی تھی، لیکن اس نے مٹیریلزم یعنی مادے پہ بھروسہ کیا، اللہ تعالیٰ کو اس نے کی وہ مطلب سائڈ کر دیا۔ اگر آپ کا بھروسہ بھی مادے پہ ہے، اسباب پہ ہے، تو آپ بھی شرک میں ملوث ہیں، جس شرک میں یہ باغ والا ملوث تھا۔ تو تبھی تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ پھر آیت نمبر 43 میں کہا، نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کام بنانے کا اختیار خدائے برحق ہی کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ دے اور انجام وہی اچھا ہے جو وہ دکھائے۔ آیت نمبر 45 سے دنیا کی زندگی کی حقیقت اللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں دنیا کی زندگی کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور کل زمین کی وہی پیداوار بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی آسمان سے پانی آیا، یہ جو فصل ہے یہ ہوگی، اور لیکن وہ کچھ دنوں بعد یہ بھس بن کر اڑ جاتی ہے۔ تو دنیا کی زندگی بھی یہی ہے کہ ابھی سدا بہار ہے اور کچھ دنوں کے بعد یہ
जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये माल और ये औलाद सिर्फ दुनियावी, आयत नंबर 46, ये माल और ये औलाद सिर्फ दुनियावी जिंदगी की थोड़े दिनों की आराइश है। असल में तो बाकी रह जाने वाली नेकियां ही तेरे रब के नजदीक वो नतीजे के एतबार से बेहतर हैं, उन्हीं से अच्छी उम्मीद बांधी जा सकती है। आयत नंबर 47 से अल्लाह ताला कयामत का मंजर हमारे सामने खींचेंगे। फिक्र उस दिन की होनी चाहिए जबकि हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम जमीन को बिल्कुल नंगा पाओगे, और हम तमाम इंसानों को इस तरह घेर कर जमा करेंगे कि अगले पिछलों में से एक भी न छूटेगा। यानी कयामत का मंजर खींच रहा है कि उस दिन क्या होगा। और सब के सब तुम्हारे रब के सामने वो कतारों में पेश किए जाएंगे। लो देख लो, आ गए ना तुम हमारे पास, उसी तरह जैसा हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था। तुमने तो ये समझा था कि हमने तुम्हारे लिए कोई वादे का वक्त मुकर्रर ही नहीं किया है, और अमाल नामा सामने रख दिया जाएगा। उस वक्त तुम देखोगे कि मुजरिम लोग अपनी जिंदगी की किताब में लिखी बातों से डर रहे होंगे और कह रहे होंगे कि हाय हमारी बदनसीबी, ये कैसी किताब है। यानी अमाल नामे को वो कह रहे होंगे, ये कैसी किताब है कि हमारी कोई छोटी बड़ी हरकत ऐसी नहीं रही जो इसमें दर्ज ना हो गई हो। यानी सब कुछ उसके अंदर अमाल नामे में दर्ज था। जो 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 कुछ उन्होंने किया था वो सब अपने सामने मौजूद पाएंगे, और तेरा रब किसी पर जरा भी जुल्म ना करेगा। याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा था, वो कहा कि आदम को सजदा करो, तो उन्होंने सजदा किया मगर इबलीस ने ना किया। वो जिन्नों में से था, इसलिए अपने रब के हुक्म की पैरवी से निकल गया। अब क्या तुम मुझे छोड़कर उसको और उसकी औलाद को अपना सरप्रस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन हैं। बड़ा ही बुरा बदल है जिसे जालिम लोग अपना रहे हैं। मैंने आसमान और जमीन पैदा करते वक्त उनको नहीं बुलाया था, और ना खुद उनकी अपनी पैदाइश में उन्हें शरीक किया था। मेरा ये काम नहीं है कि गुमराह करने वालों को अपना मददगार बनाया करूं। फिर क्या करेंगे ये लोग उस दिन जबकि इनका रब इनसे कहेगा कि पुकारो अब उन हस्तियों को जिन्हें तुम मेरा शरीक समझ बैठे थे। ये उनको पुकारेंगे मगर वो इनकी मदद को ना आएंगे, और हम उनके बीच एक ही हलाकत का गड़ा साझा कर देंगे। सारे मुजरिम उस दिन आग देखेंगे और समझ लेंगे कि अब उन्हें उसमें गिरना है, और वो उससे बचने के लिए कोई पनाह ना पाएंगे। हमने इस कुरान में लोगों को तरह तरह से समझाया, मगर इंसान बड़ा ही झगड़ालू साबित हुआ। उनके सामने जब हिदायत आई तो उसे मानने और अपने रब के सामने माफी चाहने से आखिर उनको किस चीज ने रोक दिया? इसके सिवा और कुछ नहीं कि वो इंतजार में है कि उनके साथ भी वही कुछ हो जो पिछली कौमों के साथ हो चुका है, या ये कि वो अजाब को सामने आते देख लें। रसूलों को हम इस काम के सिवा और किसी गरज के लिए नहीं भेजते कि वो खुशखबरी देने वाले और खबरदार करने का काम पूरा करें। मगर इनकार करने वालों का हाल ये है कि वो बातिल के हथियार लेकर हक को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और उन्होंने मेरी आयतों को और उन चेतावनियों को जो उन्हें दी गई थी मजाक बना लिया। और उस आदमी से बढ़कर जालिम और कौन है जिसे उसके रब की आयतें सुनाकर नसीहत की जाए और वो उनसे मुंह फेरे और उस बुरे अंजाम को भूल जाए जिसका असर समान उसने अपने लिए वो खुद अपने हाथों किया है। जिन लोगों ने ये रवैया अपनाया है उनके दिलों पर हमने गिलाफ चढ़ा दिए हैं, जो उन्हें उन्हें कुरान की बात नहीं समझने देते। उनके कानों में हमने गिरानी पैदा कर दी है। तुम उन्हें हिदायत की तरफ कितना ही बुलाओ, वो इस हालत में कभी हिदायत ना पाएंगे। तेरा रब बड़ा माफ करने वाला और रहम वाला है। वो इनके करतूतों पर इन्हें पकड़ना चाहता तो जल्दी ही अजाब भेज देता, मगर इनके लिए वादे का एक वक्त मुकर्रर है, और उससे बचकर भाग निकलने की ये कोई राह ना पाएंगे। ये अजाब की लपेट में आई हुई बस्तियां तुम्हारे सामने मौजूद हैं। इन्होंने जब जुल्म किया तो हमने इन्हें तबाह कर दिया, और इनमें से हर एक की तबाही के लिए हमने वक्त मुकर्रर कर रखा है। आयत नंबर 60 से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत जो खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात कि उनसे मुलाकात होगी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, वो खिज़र अलैहिस्सलाम से, और एक सफ़र होगा उसमें फिर पूरा खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा बताया जाएगा। हुआ ये था कि बनी इसराइल को लेकर मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन से लेकर निकल गए थे, और फ़िलिस्तीन में अभी नहीं गुजरे, मतलब कि गए थे वो 40 साल तक अल्लाह ताला ने फ़िलिस्तीन उन पर हराम कर दिया था, ताकि वो जो गुलामी से निकली हुई कौम थी वो तबाह हो जाए,
اور दूसरी कौम आए, फिर उन्होंने फिलिस्तीन को फतह किया था। इसी के बीच में मूसा अलैहिस्सलाम के कुछ क्वेश्चन थे, और उन क्वेश्चन के लिए अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को खिज़र अलैहिस्सलाम के पास भेजा, और वो उनके साथ रहे। और वो फिर पूरा वाक़या चलता है। वो खिज़र अलैहिस्सलाम को हर बात पे टोक देते हैं, तो खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुम्हें टोकना नहीं है, तुम्हें सिर्फ साथ रहना है, और मैं तुम्हें सारी बातों की हकीकत बाद में बता दूंगा, तुम सब्र करो। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम से सब्र नहीं होता, वो बार बार पूछते हैं, और 3 बार जब पूछ लेते हैं तो खिज़र अलैहिस्सलाम पूछते हैं, कह देते हैं कि मैं अब उन बातों की हकीकत तुम्हें बता देता हूँ जो अब तक हुआ है, लेकिन अब तुम मेरे साथ नहीं रहोगे। तो एक खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या यहाँ से स्टार्ट होगा। और जरा इनको वो किस्सा सुनाओ जो मूसा को पेश आया था, जबकि मूसा ने अपने खादिम से कहा था कि मैं अपना सफर खत्म ना करूंगा जब तक कि दोनों नदियों के संगम पर ना पहुंच जाऊं, वरना मैं एक लंबे जमाने तक चलता ही रहूंगा। यानी अल्लाह ताला ने निशानी ये बताई थी कि आपको वहां जाना है, और वहां निशानी है कि 2 नदियों का संगम होगा, और वहां से जो मछली है ना, वो निकल कर जमीन पर आएगी। तो जब ये निशानी पूरी हो जाए तो वहीं आपको वो खिज़र अलैहिस्सलाम मिलेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपने खादिम के साथ वो खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए वो निकल चुके थे। फिर आयत नंबर 61 में कहा, तो जब वो उनके संगम पर पहुंचे, 61, जब वो उनके संगम पर पहुंचे तो अपनी मछली से गाफिल हो गए, और वो निकलकर इस तरह नदी में चली गई जैसे कि कोई सुरंग लगी हो। आगे जाकर मूसा ने अपने खादिम से कहा, लाओ हमारा नाश्ता, आज के सफर में हम बुरी तरह थक गए हैं। खादिम ने कहा, आपने देखा ये क्या हुआ? जब हम उस चट्टान के पास वो ठहरे हुए थे, उस वक्त मुझे मछली का ध्यान न रहा, और शैतान ने मुझको ऐसा गाफिल कर दिया कि मैं उसका जिक्र भूल गया। यानी वो मछली जो थी ना, वो पीछे छोड़कर आ गए थे। मछली तो अजीब तरीके से निकलकर वो नदी में चली गई। मूसा ने कहा, इसी की तो हमें तलाश थी। चुनाचे वो दोनों अपने पैरों के निशानों पर फिर वापस हुए, यानी पैरों के निशान चलते चलते जहां से आए थे वहीं फिर वो वापसी गए। और वहां उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया। वो बंदे कौन थे? वो खिज़र अलैहिस्सलाम थे। बंदे को पाया जिसे हमने अपनी रहमत से नवाजा था, और अपनी तरफ से एक खास इल्म अता किया था। यानी अल्लाह ताला ने उनको रहमत से नवाजा और एक खास इल्म उनको अता किया था। मूसा ने उससे कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ, ताकि आप मुझे भी उस इल्म की तालीम दें जो आपको सिखाया गया है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम उनसे तालीम लेने के लिए गए थे, जो आपको इल्म दिया गया है, अल्लाह ताला ने मुझे बताया, वो इल्म आप मुझे भी सिखाएं। तो क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? फिर उन्होंने जवाब दिया, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। आयत नंबर 67 में उन्होंने साफ कह दिया कि साथ तो रह लो, लेकिन आप मेरे साथ वो सब्र नहीं कर सकते, ये खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा। और जिस चीज की आपको खबर ना हो, आखिर आप उस पर सब्र वो कर भी कैसे सकते हो? यानी खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, जिस चीज का आपको पता ना हो उस पर आप वो सब्र वो करेंगे भी कैसे? पॉसिबल कैसे है? फिर मूसा ने कहा, इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे, और मैं किसी मामले में आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। उसने कहा, अच्छा, अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो मुझसे कोई बात न पूछें जब तक कि मैं खुद उसका आपसे जिक्र ना करूं। यानी मूसा अलैहिस्सलाम को इस कंडीशन पे खिज़र अलैहिस्सलाम ले गए कि मेरे साथ चल लो, लेकिन मुझसे पूछना कुछ नहीं जब तक मैं खुद आपको उसका जिक्र ना कर लूं। तो फिर सबसे पहले वो एक उसमें गए, यानी समुद्री रास्ते में गए, एक कश्ती पे, एक नाव में वो सवार हो गए। तो वो वाकया है। अब वो दोनों रवाना हुए, यहाँ तक कि जब वो एक नाव में सवार हो गए तो उस शख्स ने नाव में दरार डाल दी। यानी खिज़र अलैहिस्सलाम ने क्या करा? उस शख्स में जो है ना, कि जो नाव में जो है ना, दरार डाल दी। मूसा ने कहा, आपने उसमें दरार पैदा कर दी ताकि सब नाव वालों को डुबो दे, ये तो आपने एक सख्त हरकत कर डाली। उसने कहा, मैंने तुमसे वो कहा ना था कि तुम मेरे साथ वो सब्र नहीं कर सकते। यानी खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम तुमसे कहा तो था, तुम सब्र नहीं कर सकते मेरे साथ। मैंने जो काम किया है उस पर मुझसे मत पूछे कि मैंने क्यों किया है, बाद में आपको बाद में जवाब दे दिया जाएगा। मूसा ने कहा, भूल चूक पर मुझे ना पकड़िए, मेरे मामले में आप जरा सख्ती से काम ना लें। यानी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको टोका। फिर क्या हुआ? फिर वो एक बस्ती की तरफ गए, फिर वो दोनों चले, यहाँ तक कि उनको एक लड़का मिला। फिर उन्हें रास्ते में एक लड़का मिला, और उस शख्स ने उसे कत्ल कर दिया। यानी खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस लड़के को कत्ल कर दिया। पहले क्या काम करा था? वो नाव में सुराख कर दिया था। फिर आगे चले, मूसा अलैहिस्सलाम भी साथ में, एक लड़के को खिज़र अलैहिस्सलाम ने कत्ल कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, आपने एक बेगुनाह की जान ले ली, हालांकि उसने किसी का खून ना किया था।
ये काम तो आपने बहुत ही बुरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तक हमारे जो पारे हैं 15 वो मुकम्मल हो चुके हैं, यानी आधा कुरान हमने मुकम्मल कर लिया है और पारा नंबर 16 हमारा यहाँ से आयत नंबर 75 से हमारा स्टार्ट होगा। आधे कुरान का दौरा हमने कर लिया है। तो ये सूरह कहफ को हम मुकम्मल कर लेते हैं आज। अगर कोई जाना चाहते हैं तो प्लीज़ वो जा सकते हैं, रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, उसमें वो आगे का वाक़या सुन सकते हैं। फिर जब वो लड़के को उन्होंने कत्ल कर दिया तो फिर आगे का उसने कहा, मैंने तुमसे वो कहा ना था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। यानी खिज़र अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, फिर टोक दिया मूसा अलैहिस्सलाम तुमने मुझे, मैंने कत्ल किया लेकिन आपको पूछना नहीं है। तो मूसा ने कहा, इसके बाद अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप मुझे साथ ना रखें। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कह दिया, अब नहीं टोकूंगा, अगर अब टोकूं तो मुझे अपने साथ से निकाल देना, फिर मुझे अपने साथ नहीं रख आपको नहीं रखना है। लीजिए, अब तो मेरी तरफ से आपको उज़्र मिल गया। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अब तो उज़्र मिल गया, अब बस एक 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 मौका और दे दो, अब नहीं पूछूंगा तुमसे। फिर वो एक बस्ती की तरफ वो जाने लगे, फिर वो आगे का वाक़या आता है। फिर वो आगे चले यहाँ तक कि एक बस्ती में पहुंचे और वहां के लोगों से खाना मांगा। यानी एक बस्ती में गए और वहां के लोगों से वो खिज़र अलैहिस्सलाम ने खाना मांगा, मगर उन्होंने इन दोनों की मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। बस्ती वालों ने खाना देने से ही मना कर दिया। वहां उन्होंने एक दीवार देखी जो गिरने के करीब थी। यानी उस बस्ती में एक दीवार थी जो कि गिरने वाली थी। तो उस शख्स ने उस दीवार को सीधा खड़ा कर दिया। यानी वो खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसकी दीवार की मरम्मत कर दी। उस बस्ती वालों ने खाना नहीं दिया लेकिन उन्होंने दीवार की मरम्मत कर दी। मूसा ने कहा, अगर आप चाहते तो इस काम का मेहनताना ले सकते थे। मूसा ने कहा, अगर आप चाहते तो इन बस्ती वालों से इस काम का मजदूरी आप ले सकते थे। तो उसने कहा, यानी वो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, बस मेरा तुम्हारा साथ खत्म हुआ। यानी आपने तीसरी बार मुझे टोक दिया, मेरे काम में आपने डिस्टरबेंस की, तीसरी बार टोक दिया, बस मेरा तुम्हारा साथ खत्म हुआ। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कह भी दिया था, अब टोकूं तो अब आप मुझे मेरे साथ नहीं रखना। फिर खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं, अब मैं तुम्हें उन बातों की हकीकत बताता हूँ जिन पर तुम सब्र ना कर सके। अब फिर उन तीनों वाक़यात की असल हकीकत को खिज़र अलैहिस्सलाम बताएंगे। उस नाव का मामला ये है कि जो वो कुछ गरीब आदमियों की थी जो नदी में मेहनत मजदूरी करते थे। मैंने चाहा कि उसे इब्दार कर दूं क्योंकि आगे एक ऐसा बादशाह का इलाका था जो हर नाव को जबरदस्ती छीन लेता था। यानी उस नाव में इसलिए छेद किया क्योंकि आगे जो है ना एक बादशाह का इलाका था, वो हर नाव को जो है ना छीन लिया करता था। लेकिन खिज़र अलैहिस्सलाम ने वो गरीब की एक नाव थी उसकी नाव में छेद कर दिया ताकि वो बादशाह उसकी नाव ना छीने। तो वो नाव वाले वाक्य की हकीकत तो ये रही। फिर दूसरे वाक्य की हकीकत वो खिज़र अलैहिस्सलाम बताएंगे। रहा वो लड़का तो उसके माँ बाप ईमान वाले थे और हमें डर हुआ कि ये लड़का अपनी सरकशी और कुफ्र से उनको तंग करेगा, इसलिए हमने चाहा कि उनका रब उसके बदले उनको ऐसी औलाद दे जो अखलाक में भी उससे बेहतर हो और जिससे रिश्ते नाते निभाने की उम्मीद भी ज्यादा हो। यानी उस लड़के का कत्ल इसलिए किया क्योंकि वो अपने माँ बाप का नाफरमान था और आगे जाके वो उनको दुख देता, इसलिए उस लड़के को वो कत्ल कर दिया। इस बेस पे आप दुनिया में किसी का कत्ल नहीं कर सकते। वो अल्लाह के हुक्म से कत्ल किया था कि वो खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से काम कर रहे थे। ठीक है। अब हमारी शरीयत में ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें किसी लड़के से खौफ है, या भाई ये आगे जाके नाफरमानी करेगा तुम उसको कत्ल कर दोगे, तुम नहीं कर सकते। लेकिन वो खिज़र अलैहिस्सलाम ने फिर उनकी हकीकत बताई कि उस लड़के को इसलिए कत्ल किया। अब बताएंगे दीवार की हकीकत आयत नंबर 82 से। और इस दीवार का मामला ये है, ये दो यतीम लड़कों की है। यानी ये जो दीवार मैंने सही करी है, ये दो यतीम लड़कों की है जो इस शहर में रहते हैं। इस दीवार के नीचे इन बच्चों के लिए खजाना दफन है। यानी ये यतीम बच्चों की और इस दीवार के नीचे ना एक खजाना दफन है। और इनका बाप नेक आदमी था, इसलिए तुम्हारे रब ने चाहा, यानी अल्लाह ताला ने चाहा, ये दोनों बच्चे बालिग हों और अपना खजाना निकाल लें। यानी जब ये बालिग हो जाएंगे तो अपना खजाना यहाँ से निकाल लें। ये तुम्हारे रब की रहमत की बिना पर वो किया गया है, मैंने कुछ अपने इख्तियार से नहीं कर दिया। यानी ये जो तीनों वाकयात मैंने किया अल्लाह ताला के हुक्म से किए, मैंने कुछ अपने इख्तियार से नहीं किए। ये है हकीकत उन बातों की जिन पर तुम सब्र न कर सके। यानी मूसा अलैहिस्सलाम, ये उन बातों की हकीकत है जिन पर तुम सब्र न कर सके, मुझे टोकते रहे। वो यतीम बच्चों की वो दीवार थी और अल्लाह ताला चाहते थे कि जब ये यतीम बच्चे बड़े हो जाएंगे तो इनको ये खजाना इनके हवाले कर दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा था। अब आयत नंबर 83 से जुल्करनैन का हमारे सामने तारुफ आएगा, उनका पूरा किस्सा आएगा। जुल्करनैन एक बड़े बादशाह थे जो अल्लाह ताला के नेक
कि वो इंसान थे। ये नबी थे या नहीं थे इसके बारे में इख्तिलाफ है, लेकिन ये है कि नेक शख्स थे और अल्लाह ताला ने इनका जिक्र कुरान में किया है, यही हमारे लिए काफ़ी है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग तुमसे जुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, इनसे कहो मैं उसका कुछ हाल तुमको सुनाता हूँ। हमने उसको जमीन में हुकूमत दे रखी थी, उसे हर तरह के सारो सामान दे रखे थे। यानी उस जुल्करनैन की जमीन में हुकूमत थी और बड़े पावरफुल वो इंसान थे। उसने पहले पश्चिम की तरफ एक मुहिम की तैयारी की, यानी पहले पश्चिम की तरफ अपनी एक मुहिम की तैयारी की। यहाँ तक कि जब वो सूरज के डूबने की हद तक पहुंच गया, तो उसने सूरज को एक काले पानी में डूबते देखा और वहां उसे एक कौम मिली। हमने कहा है जुल्करनैन, वो तुझे ये कुदरत भी हासिल है कि उनको तकलीफ पहुंचाए और ये भी कि इनके साथ अच्छा सलूक करे। उसने कहा जो इनमें से जुल्म करेगा हम उसको सजा देंगे, फिर वो अपने रब की तरफ पलटाया जाएगा और वो उसे और ज्यादा सख्त अजाब देगा। और जो उनमें से ईमान लाएगा और भले काम करेगा उसके लिए अच्छा बदला है और हम उसको नर्म हिदायतें देंगे। फिर उसने एक दूसरी मुहिम की तैयारी की, यानी एक इलाका उन्होंने फतह कर लिया पश्चिम की तरफ जाके। अब उन्होंने दूसरी मुहिम की एक तैयारी करी, यहाँ तक कि वो सूरज के निकलने की हद तक वो जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि सूरज एक ऐसी कौम पर निकल रहा है जिसके लिए धूप से बचने का कोई सामान हमने नहीं किया है। ये हाल था उनका, और जुल्करनैन के पास जो कुछ था उसे हम जानते थे। फिर उसने एक तीसरी मुहिम का सामान किया, यानी दोनों तरफ जुल्करनैन ने फतह कर लिया। और फिर एक तीसरी मुहिम की तरफ वो जुल्करनैन आगे बढ़े, यहाँ तक कि जब वो दो पहाड़ों के बीच पहुंचा, तो उसके उसे उनके पास एक कौम मिली जो मुश्किल ही से कोई बात समझती थी। यानी एक कौम मिली, वो कौम कौन सी है? याजूज और माजूज की कौम, जो कि कुर्ब कयामत वापसी आएंगे इस दुनिया में। तो तीसरी मुहिम में जुल्करनैन जो है याजूज माजूज की तरफ वो बढ़े थे, यहाँ तक कि जब वो दो पहाड़ों के बीच पहुंचे, तो उसे उनके पास एक कौम मिली जो मुश्किल ही से कोई बात समझती थी। उन लोगों ने कहा, ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज इस सरजमीन में बिगाड़ फैलाते हैं, तो क्या हम तुझे कोई टैक्स इस काम के लिए दें कि तू हमारे और उनके बीच एक बंद तामीर कर दे? यानी वहां जो रहने वाले बाशिंदे थे उन्होंने कहा, ये जो याजूज और माजूज की कौम है ना, ये बड़े बिगाड़ फैलाते हैं, तो तू कोई बंद तामीर कर दे, एक रुकावट बना दे, या इसके लिए हम तुम्हें कोई टैक्स दें। तो याजूज और माजूज के बारे में रिवायतों में है, और वो कुर्ब जो कयामत है ये वापसी इस दुनिया में आएंगे। तो फिर आयत नंबर 95 में कहा, उसने कहा जो कुछ मेरे रब ने मुझे दे रखा है वो बहुत है। यानी जुल्करनैन ने कहा मुझे टैक्स की जरूरत नहीं है, जो कुछ अल्लाह ताला ने दे रखा मेरे पास बहुत है। तुम बस मेहनत से मेरी मदद करो, यानी मेरी मदद करनी तो सिर्फ मेहनत से करो। मैं तुम्हारे और उनके बीच रोक बनाए देता हूँ। किनके बीच? याजूज माजूज के बीच और उनके बीच रोक बनाए देता हूँ। मुझे लोहे की चादरें लाकर दो। आखिर जब दोनों पहाड़ों के बीच की खाली जगह को उसने पाट दिया, यानी दोनों तरफ पहाड़ थे और एक जगह जिस तरफ से वो आया करते थे, उस जगह को उन्होंने लोहे की चादरों से पिघला पिघला कर वो पाट दिया। तो लोगों से कहा अब आग देखाओ, यानी लोहे की चादरें मंगाई, फिर आग वो देखाई। यहाँ तक कि जब ये लोहे की दीवार बिल्कुल आग की तरह लाल हो गई, तो उसने कहा लाओ अब मैं इस पर पिघला हुआ वो तांबा उंडेलूंगा। ये बंद ऐसा था कि याजूज माजूज उस पर वो चढ़कर भी ना आ सकते थे, और उसमें सेंग लगाना भी उनके लिए और भी मुश्किल था। यानी ये जो आयत नंबर 96 में अल्लाह ताला ने जो वो जुल्करनैन ने एक एक बंद बनाया ना, इसके बारे में आयत नंबर 96 में इसके बारे में थोड़ा मैं आपको डिटेल दे दूं, कि पहले तो लोहे को मतलब कि मंगवाया, फिर लोहे पर आग देखवाई। जब लोहा पूरी तरह जल गया, तो फिर उस पर जुल्करनैन ने क्या उंडेड़ा? वो तांबा फिर उस पर डाला। तो लोहे और तांबे के मिलाप से ना एक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो कुछ लोग इससे कहते हैं कि वो याजूज माजूज की कौम जो है ना, वो इस दुनिया में नहीं थी। जो जुल्करनैन ने मुहिम की थी वो बाहर की दुनिया में की थी, और जुल्करनैन जो आएंगे वो आसमान की तरफ से आएंगे। यानी जो वो बंद है ना, वो एक पोर्टल की शक्ल में है कि जुल्करनैन ने दुनिया में आने का रास्ता उनका बंद कर दिया उस पोर्टल की शक्ल में। तो ये थ्योरी भी पाई जाती है, और ये कहते हैं कि जो तांबा और ये जो जो लोहे का बंद बनाया गया है, ये उसी पोर्टल के लिए बनाया गया है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है कि तांबे और लोहे से, ऐसी कुछ ये थ्योरी है। तो इनके पास भी मजबूत दलाइल है, और इस दुनिया में भी हो सकता है, वल्लाहु आलम। यानी दोनों थ्योरी है। या तो जो याजूज माजूज की कौम है इस दुनिया से बाहर हो सकती है, और जुल्करनैन ने उनका दुनिया में आने का रास्ता बंद कर दिया, और जैसे एलियन का आने का कोई रास्ता बंद कर दे।
पोर्टल को उस पोर्टल को बंद कर दे। ऐसे ही ये हो सकता है, ये भी एक थ्योरी है। दूसरी ये कि इसी दुनिया में कहीं हो, अल्लाह ताला ने उसे हमसे गायब कर दिया हो और उन पर जो है एक दीवार अल्लाह ताला ने लगा दी हो। और जो याजूज माजूज है, ये भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। यानी ये सर्कस कौम हो गई है, लेकिन है ये भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से। फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 97 में कहा, ये बंद ऐसा था कि याजूज माजूज उस पर वो चढ़कर भी ना आ सकते थे, और उसमें सेंग लगाना उनके लिए और भी मुश्किल था। यानी वो ऐसा बंद बनाया जुल्करनैन ने कि याजूज माजूज से पार नहीं कर सकते थे। जुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है, मगर जब मेरे रब का वादे का वक्त आएगा, यानी कयामत के नजदीक, तो वो उसको धूल में मिला देगा। यानी जब मेरे रब का वक्त आएगा ना कयामत का, तो याजूज माजूज को दुनिया के लिए वो खोल देगा, इस बंद को तोड़ देगा। और मेरे रब का वादा सच्चा है, और उस दिन हम लोगों को छोड़ देंगे। यानी जब वो कुर्ब कयामत की निशानी है, जब याजूज माजूज को छोड़ दिया जाएगा, उस दिन हम लोगों को छोड़ देंगे कि समुद्र की लहरों की तरह एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो, और सूर फूका जाएगा, और हम सब इंसानों को एक साथ जमा करेंगे। और वो दिन होगा जब हम जहन्नुम को हक के इंकारियों के सामने लाएंगे, उन इंकारियों के सामने जो मेरी नसीहत की तरफ से अंधे बने हुए थे, और जो कुछ सुनने के लिए तैयार ना थे। तो क्या ये लोग जिन्होंने इनकार किया है, ये समझते हैं कि मुझे छोड़कर मेरे बंदों को अपना करता धरता बना लें? हमने ऐसे इंकारियों की मेहमानी के लिए जहन्नुम तैयार कर रखी है। अब अल्लाह ताला बताएंगे वो सबसे ज्यादा खसारे में कौन लोग हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, क्या हम तुम्हें बताएं कि अपने कामों में सबसे ज्यादा नाकाम और नामुराद कौन लोग हैं? वो कि दुनिया की जिंदगी में जिनकी सारी भागदौड़ और कोशिश सीधे रास्ते से भटकी रही, और वो समझते रहे कि वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं। यानी सबसे ज्यादा नाकाम वो हैं जो दुनिया में सारी उनका स्ट्रगल, सारी भागदौड़ सीधे रास्ते से भटकी रही, यानी वो सीधे रास्ते पर नहीं थे। और वो अपने आप में ये समझ रहे हैं कि हम तो बड़ा ही अनेकी का काम कर रहे हैं, लेकिन आखिरत में उनको जाके पता लगेगा, यार ये नेकी का काम तो था ही नहीं जो हम करके आए हैं। फिर अल्लाह ताला ने कहा आयत नंबर 105 में, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयतों को मानने से इनकार किया, उसके सामने पेशी का यकीन ना किया, इसलिए उनके सारे अमाल बर्बाद हो गए। वो कयामत के दिन हम उन्हें कोई वजन न देंगे। उनका बदला जहन्नुम है, उस इनकार के बदले जो उन्होंने किया, और उस मजाक के बदले में जो वो मेरी आयतों और मेरे रसूलों के साथ करते रहे हैं। फिर अल्लाह ताला बताएंगे कि जन्नत की नेमतों से जी नहीं भरेगा इंसान का, अलबत्ता वो लोग जो ईमान लाएं और जिन्होंने भले काम किए, उनकी मेहमानी के लिए फिरदौस के बाग हैं। फिरदौस क्या है? जन्नत का एक नाम, फिरदौस के बाग हैं। वो यानी कि जन्नत के बाग हैं जिनमें वो हमेशा रहेंगे, और कभी उस जगह से निकलकर वो कहीं जाने का उनका जी ना चाहेगा। यानी उनका मन नहीं भरेगा, बोर नहीं होंगे जन्नत में। इंसान कहता ना बोर हो जाएंगे, उनका दिल ही नहीं चाहेगा कि उससे निकलकर वो कहीं जाए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहो, अगर समुद्र मेरे रब की बातें लिखने के लिए रोशनाई बन जाएं तो वो खत्म हो जाएं, मगर मेरे रब की बातें वो खत्म ना हो, बल्कि अगर उतनी ही रोशनाई हम और ले आए तो भी वो काफी ना हो। यानी अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह ताला की निशानियां इतनी हैं। सारे समुद्र अगर सियाही बन जाएं, सारे पेड़ अगर कलम बन जाएं, तो भी अल्लाह ताला की बातें खत्म ना होंगी, उसकी निशानियां खत्म ना होंगी। और चाहे अल्लाह ताला इतनी ही चीजें और लाए, तब भी अल्लाह ताला की निशानियां और बातें खत्म नहीं होंगी। फिर अल्लाह ताला ने कहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहो, मैं तो एक इंसान हूँ तुम ही जैसा, मेरी तरफ वही की जाती है, और तुम्हारा खुदा बस एक ही खुदा है। लिहाजा जो कोई अपने रब की मुलाकात का उम्मीदवार हो, उसे चाहिए कि अच्छे काम करे, और बंदगी में अपने रब के साथ किसी और को साझीदार ना बनाए। सदकल्लाहुल अज़ीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरह कहफ हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अल्लाह का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि आज हमने दौरा कुरान क्लास नंबर 16 मुकम्मल कर ली है। तो अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि जो कुछ हमने सुना और समझा, अल्लाह ताला हमारे दिलों में वो रासिख कर दे, और हमारी जिंदगी में अमली तब्दीली में भी वो लेकर आ जाए। अगर आज की क्लास से आपको जरा भी कोई थोड़ा सा भी फायदा हुआ है, तो आप इस पैगाम को आगे भी पहुंचा सकते हैं। और आप जो यूट्यूब पर हमारी दौरा कुरान की क्लासेस अपलोड हो रही हैं,
آپ انہیں بھی آگے پہنچا کر صدقہ جاریہ کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ بالکل آگے پہنچانا بالکل نہ بھولیے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں قرآن والا بنا دے۔ آخر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔